Namaskar everyone. Welcome to the educational Sunday webinar by MedDevice Circle. This Sunday webinar is organized in technical collaboration with Anamol Laboratories Private Limited. I welcome all the participants who have taken their time on a Sunday for taking this wonderful learning journey and sacrificing their family time. So thank you to all the participants who have registered. And also a big thank you to all the participants who have registered to this webinar using the Google form by submitting their questions. This has helped us to make the webinar tailor-made for answering your questions, which you face in your day-to-day life. Friends, let me first take a moment to elaborate why MedDevice Circle has taken this initiative of organizing this Sunday webinar. The whole purpose is that in our IVD industry, we face day-to-day challenging situations in pathology labs. Now, these challenging situations may be related to certain results which are not coming as per the expectations, or maybe certain products which are not behaving as per the protocol, or it may be certain expectations of the pathologist or the lab technicians, which probably we as suppliers of the products are not able to meet. Now, sometimes these situations are so niche that their results or their answers are not available in any format, neither in some of the textbooks or in some of the Google or YouTube videos. So in these situations, we really take help of some expert who is there in this industry for many years and who has got the subject matter expertise. Now, their experience and their knowledge help us navigate to solve these difficult situations. So, with this intention, the entire team of MedDevice Circle has taken this initiative of organizing this Sunday webinar. The aim of this webinar is to have technical queries answered by the subject matter expertise. Now, when we talk about the subjects of clinical chemistry and immunoturbidimetry, we have a subject matter expert from Anamol Laboratories Private Limited. He is none other than Mr. Mahendra Dashora. Mr. Dashora has been in this field for 41 years and he was the co-founder of Accurex Biomedical, and he is also the first person in India to manufacture in-house urine test strips, and he was the first person in India to in-house manufacture liquid stable enzymatic reagents. He was also instrumental in introducing HDL and LDL cholesterol test in the Indian IVD market. So with this brief introduction, Mr. Dashora has many feathers on his hat, and he is considered as one of the subject matter experts in the field of clinical chemistry and immunoturbidimetry. So with this brief introduction, the format of this Sunday webinar is organized in such a way that the webinar will be conducted once in a month on a Sunday, and it will continue for up to 1 year, which means that there are total of 12 webinars which are already planned. And each month, one particular Sunday, Mr. Dashura will take out his time and he will answer the queries which are faced by our friends and brothers in the IVD industry at the customer premises. This webinar is intended to be participated by our friends and brothers who work in the field of sales or application or engineering or in some management position in the AVD company. And also it is intended to be participated by our brothers and sisters who are the frontline laboratory technicians who day to day perform these tests. And they are also to be intended to be participated by the pathologist who run the pathology lab day to day. So if you face any critical or unique situation for which there are no direct answers which are available in the internet or in the textbook, you may probably join this webinar and ask the questions directly to one of the most technical experts
that India has produced. So, with this brief introduction, let us join our hands together and welcome Mr. Dashura to start his webinar. Thank you very much, friends. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम सेकंड टाइम मिल रहे हैं और ये संडे की मॉर्निंग में हमारे पास में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जिसको हमने ले लिया है लाइन के ऊपर। हमने उनकी एक लिस्ट बनाई, क्वेश्चंस को कंपाइल किया और कैटेगरीज में डिवाइड करके और कॉमन आंसर्स वाले क्वेश्चंस को ग्रुप में लिया है और स्लाइड भी इसी तरीके से बनाई है कि हमको सारे ग्रुप्स में आंसर्स मिलेंगे। तो let's start with the slides. Is it clear? Okay. I hope everybody can see the slides. Yes, sir. मेरी आवाज भी क्लियरली आनी चाहिए आपको। Yes, sir. कहीं बीच में कोई भी तकलीफ है, टेक्निकल ग्लिच है तो जरा बताइएगा ताकि ये संडे का हम पूरा फायदा उठा सकें। IVD ट्रबल शूटिंग वेबिनार संडे सीरीज कोलैबोरेशन विद मेड डिवाइस, खास करके हम दो सब्जेक्ट्स के अंदर इसको कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो बायोकेमिस्ट्री के रिएजेंट्स और उनके अंदर आने वाली तकलीफें और इम्यूनोटेबिलिटी से रिलेटेड। ओके, मेरा नाम महेंद्र दशोरा, मैनेजिंग डायरेक्टर अनामोल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। मेड डिवाइस के साथ में हम जुड़ के बहुत प्रसन्न हैं कि हम इसको लेके चल रहे हैं आगे। हमारे पास में करीब 15-17 अलग तरह तरह के क्वेश्चंस आए थे कैटेगरीज के हिसाब से और हमने उनको ग्रुप में किया और उनके कॉमन आंसर्स निकाले हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां पे क्वेश्चंस वेग हैं तो उनको ब्रॉडली एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और आपको और भी क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस आते ही रहेंगे। आप एक साइड में पेज पे उनको लिखते जाइएगा और जो क्वेश्चंस एंड में वापस हम लेंगे ताकि उनको क्लैरिफिकेशन और अच्छी तरह से किया जा सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड। Yes, sir. हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए जो रिजल्ट से रिलेटेड है कि क्लिनिकल केमिस्ट्री में रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो मैंने इनको सारे को ग्रुप किया। रिजल्ट्स वेरिएशन इन वेरियस पैरामीटर, जबकि लैम्प गेन भी अच्छा है, फ्लो सेल भी ठीक है, फिर भी रिजल्ट्स में वेरिएशन है। एक क्वेश्चन था मैक्सिमम इन रिजल्ट, समझ भी नहीं आया मुझे क्या, लेकिन आगे उन्होंने लाइन लिखा है कि कैलिब्रेशन फैक्टर, ये एक उनका कंसर्न है। क्यूसी रिजल्ट्स आउट होते हैं, रिएजेंट स्टेबल नहीं है, इम्प्रॉपर ग्राफ प्लॉटिंग आ रही। ये सारे क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में आए हैं वही लैंग्वेज में मैंने इनको ग्रुप करके यहाँ पे लिखा है। एक क्वेश्चन था वेरिएशन इन क्यूसी इंटरमिटेंटली और एक क्वेश्चन था रिजल्ट्स इश्यूज। अभी इन सबको मिला के बड़ी जनरल आंसर्स बनाने का कोशिश किया है। लार्जली जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं शायद उनको अपने आंसर्स इसके अंदर मिलेंगे। कि लेट्स से एक सिचुएशन हम ये लेते हैं कि कोई भी लैब में इस तरह से रिजल्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या डाउट्स होते हैं, तो उस लैब में एक कंट्रोल सीरम जरूर यूज किया जाता है, हर एक लैब में होता है वो। तो अपने को जब लैब में विजिट करना है तो ये ध्यान देना है कि कौन सा कंट्रोल सीरम वो यूज कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए उसकी मीन वैल्यू है क्या, और क्या हमारा रिजल्ट उस मीन वैल्यू के आसपास आ रहा है या प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ रहा है। ये पहला हमारा पॉइंट होगा चेक करने का। और यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स हमको यहाँ पे मिलने लग जाएंगे कि मेरे रिजल्ट्स के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस कितना है जो कंट्रोल सीरम यूज किया जा रहा है वो। ओके, दूसरी चीज जो हमको चेक करनी चाहिए, हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मैचिंग विद द रेफरेंस मेथड है क्या। अगर कहीं हमारे को रिजल्ट्स पर डाउट है तो वो डाउट कस्टमर क्रिएट कर रहा है या हमको पूछ रहा है कि ये वैल्यू बराबर है, तो आप किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर डाउट है या रिजल्ट्स के अंदर वेरिएशन क्यों आ रहा है। तो क्या आप किसी रेफरेंस मेथड को लेके बोल रहे हैं कि नहीं मुझे इस मेथड से ये रिजल्ट्स है, आपके मेथड से मुझे ये रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो हमको इसके अंदर कैटेगराइज करना पड़ेगा कि वो रेफरेंस मेथड के बदौलत अपने को कंप्लेन कर रहा है क्या रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर। ओके, सेकंड चीज जो हमको देखनी है कि कहीं कस्टमर का डाउट रिजल्ट्स के ऊपर इस चीज को लेकर तो नहीं है कि क्लिनिकली वो पेशेंट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ
सिम्टम्स लेके आया है और आपके रिजल्ट उससे मैच ही नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल है, लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, जीपीटी वैल्यू एकदम नॉर्मल आ रही है। तो वहां पे हमको ये ध्यान देना है कि क्या हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सारी चीज को एड्रेस करने जाएं क्या, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े ओपन है। तो मेरे आंसर्स भी सारे पॉइंट्स को कवर करने के हिसाब से बनेंगे। क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट या किसी रेफरेंस लैब से आया हुआ पेशेंट है और उसके रिजल्ट्स हमारे रिजल्ट्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये भी एक डाउट कई बार आता है। तो हमको इस एंगल से भी उस रिजल्ट्स को देखना है कि रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस के ये पॉइंट भी हो सकते हैं। और पॉइंट्स देखने जाएंगे तो हमको बेस्ट इसमें से आंसर हमको क्या निकालने हैं कि क्या उस लैब में एक थर्ड पार्टी कंट्रोल सीरम वैल्यू एस्टैब्लिश की जा सकती है। अगर हमने कोई रेफरेंस कंट्रोल सीरम है जैसे बायोरैड है या प्रेसिनॉम प्रेसिपैथ है या रैंडॉक्स के कंट्रोल हैं, और वो उस सिचुएशन में हमने वहां पे लैब में रन करके देखे, वहां पे हमको वैल्यू एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आती है, तो हमारा तो कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाएगा कि भाई रिजल्ट्स जो भी आ रहे हैं आपको उसको कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट करना है, आप डाउट मत करिए। आपके जो डाउट अगर किसी और के द्वारा किए जा रहे हैं तो उनका बेसिस कुछ और होगा। हमको उन पहले जो 5-6 पॉसिबिलिटीज थे उसके अंदर ही कोई ना कोई आंसर इसका ढूंढना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी कंट्रोल सीरा वैल्यू बेस्ट कॉन्फिडेंस बूस्टर है हमारा ऐसी सिचुएशन में। देन हर एक लैब एक डेली क्वालिटी कंट्रोल करता ही है। लेविजेनिंग चार्ट नॉर्मली वो प्लॉट करते ही हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों वैल्यू के कंट्रोल सीरम के लिए। तो लेट्स सी कि उनके रिजल्ट्स रोज के अंदर कैसे आ रहे हैं, वो भी एक ध्यान देने वाली बात है। अगर ये भी यहाँ पे अपने को सब कुछ ठीक चल रहा है, अपना कॉन्फिडेंस वापस बढ़ गया कि हमारा रिजल्ट्स तो बराबर है सर, और कुछ है रीजन जिसको हम ढूंढेंगे, अभी तो ये मेरे रिजल्ट्स रिपोर्टेबल है। लैब किसी एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है और वहाँ उनका स्कोर बहुत अच्छा है, जो बायोरैट और रैंडॉक्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ऐसे प्रोग्राम में आपका स्कोर इस महीने का या पिछले कुछ महीने का कैसा है, फिर से ये हमारा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि हमारे रिजल्ट्स डिपेंडेबल है। अगर इन चीज़ों में हम ध्यान देना शुरू करेंगे, और दूसरा बड़ा चीज कि मेरा रिजल्ट्स आज का या कल का या परसों का रिपीटेबल है, दैट मीन्स मेरे रिएजेंट के सेटअप के साथ में परसेंटेज कोफिशिएंट वेरिएशन जो मैन्युफैक्चरर ने क्लेम किया है वो मेरे को डेली मेरे क्यूसी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मेरे कॉन्फिडेंस बूस्टर्स हैं कि रिजल्ट्स रिलेटेड कोई भी डाउट अगर मेरे रिएजेंट्स के अंदर खड़े होते हैं तो मैं उनको इस तरीके से इनको एड्रेस कर सकता हूँ। ओके। और नॉर्मली परसेंटेज सीवी के बारे में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि 5% सीवी, दैट मीन्स ये वेरिएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 5% एंड बिलो इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री होता है किसी भी लैब सेटअप के लिए। ऑल्दो ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से, लाइक एंजाइम एसिड अल्कलाइन फॉस्फेटेज में थोड़ा 6 या 7% तक भी अलाउ करती है वर्ल्ड कम्युनिटी, WHO एक्सेट्रा, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर 5% से नीचे अगर अपना सीवी है रिपोर्टेबल, जो कि आपके एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट प्रोग्राम और डेली क्यूसी में डिफाइन होके आता रहता है ये। और अभी एक सिचुएशन है, ये पिछली स्लाइड के कुछ हिस्से हमने लिए हैं जिसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी लैब में ऐसा होता है कि ओनर ऑफ द लैब वो अपने कैबिन में बैठा है, टेक्नीशियंस हॉस्पिटल में या लैब में सैंपल्स रन कर रहे हैं, अभी वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर क्वालिटी कंट्रोल सीरम उनको मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या है, रिजल्ट इसका क्या होगा, वो पेशेंट की रिपोर्ट बराबर नहीं आएगी। तो ओनर्स लोगों ने, डॉक्टर्स लोगों ने ये एक चीज बनाई है कि क्वालिटी कंट्रोल सीरम का एक रिकॉन्स्टिट्यूशन उठा के और टेक्नीशियन को एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर या पेशेंट आईडी दे के और अंदर दे दिया जाता है कि आप एस्टिमेट करिए ये पूरा लॉट है आज का। अभी उस टेक्नीशियन को मालूम ही नहीं है कि कौन से नंबर का सीरम रियल पेशेंट का है और कौन सा रियली एक क्वालिटी कंट्रोल सैंपल है जिसकी वैल्यू मॉनिटर की जा रही है उसके आज के टेस्ट सेटअप में। तो वो ब्लाइंड इंटरवल के अंदर डालने के बाद में एक दूर बैठे हुए डॉक्टर को या पैथोलॉजिस्ट को ये मालूम चलता है कि मेरे आज की रिपोर्ट्स
सारी रिपोर्टेबल है कि नहीं है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप है उसका। और अगर और भी कहीं कुछ डाउट आता है तो आपको पहले जाके जो भी आईएफयू है उस पर्टिकुलर रिएजेंट सेटअप का, उसके अंदर ध्यान से देखना पड़े कि कहीं मैंने कोई स्टेप तो मिस नहीं कर दिया है। जैसे कैलिब्रेशन वैल्यू, कैलिब्रेटर की वैल्यू पिछले लॉट की प्रोग्राम में डाली हुई है और लॉट चेंज हो गया है, इस तरीके के जो है ये अपने को देखने पड़ेंगे कि मेरे जो टेस्ट पैरामीटर्स आईएफयू में लिखे हुए वो मेरे प्रोग्राम में सारे हैं या नहीं है। अगर हमने इतनी चीजों को और पाइपेट कैलिब्रेशन को और एनालाइजर के कैलिब्रेशन की वैलिडिटी को कंफर्म किया है, और एक और चीज कि राइट सैंपल लिया जा रहा है, जहां सीरम बोला है वहां पे हमने सीरम लिया, जहां होल ब्लड बोला है होल ब्लड लिया है, जहां पे फ्लोराइड बल्ब बोला है वहां पे फ्लोराइड बल्ब का लिया है, और जहां पे कैल्शियम जैसे टेस्ट हैं जहां पे ईडीटीए वगैरह नहीं यूज करनी चाहिए वो नहीं किए गए हैं। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ये सारी इंफॉर्मेशन आईएफयू में होती है। इतनी चीजों को अगर हम ध्यान देंगे और ऑपरेटर भी परफेक्ट एंड ट्रेंड होगा, कोई नाइट ऑपरेटर, साइड वाला आदमी, कोई अनक्वालिफाइड टेक्नीशियन, ये सब चीजें हमको गारंटी देगी कि हमारे रिपोर्ट्स, हमारे डेटा टू बी रिपोर्टेड टू अ क्लिनिशियन वो डिपेंडेबल होंगे और रिजल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे। तो क्योंकि वेरिएशन है, रिपोर्ट पे ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, इन सब के पॉइंट्स के अंदर कहीं न कहीं एक जगह पे आपका आज का ये वेरिएशन ऑफ रिजल्ट्स या डाउटिंग ऑफ द रिजल्ट्स या क्वेश्चन मार्क ऑन दैट, इसमें कहीं ना कहीं बैठेगा। क्योंकि जनरल क्वेश्चंस थे तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने का कोशिश किया कि आंसर इनमें से किसी एक जगह पे मिलेगा आपको। बेस्ट है आप टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट, रिएजेंट पैरामीटर्स और कैलिब्रेशन वैल्यूज, पाइपेट कैलिब्रेशन एंड कंट्रोल्स की वैल्यू, इन चार पांच चीजों पे ध्यान देंगे तो आपको रिजल्ट्स के ये वेरिएशन या क्वेश्चन मार्क के आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके सर, दिस इज व्हाट आई कुड डू बेस्ट। जो सारे पैरामीटर्स को हमने पकड़े कि कहाँ अपने को रिजल्ट्स के ऊपर आता है। अभी एक दूसरा सड़क क्वेश्चन ये था, ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था, जो पहली मीटिंग हमारी 15 मार्च को हुई थी, उस मीटिंग के अंदर सीआरपी के ऊपर ही आया था क्वेश्चन, कि अभी इस बार आरए पे आया है, रोमेटोइड आर्थराइटिस फैक्टर के ऊपर, कि रिजल्ट्स कभी कभी हमको नेगेटिव मिलते हैं। अभी इस नेगेटिव रिजल्ट्स का क्या रीजन हो सकता है? इन केस ऑफ सीआरपी लास्ट टाइम हमने इसको भी डिस्कस किया था, और सेम आंसर आरए के अंदर भी आ रहा है। और इस आंसर को हम इस तरीके से देखेंगे कि आप हमेशा कैलिब्रेटर की वैल्यू को ध्यान से देखिए, चाहे सीआरपी है चाहे रोमेटोइड आर्थराइटिस फैक्टर है। कैलिब्रेटर की वैल्यू हमारी नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज्यादा होती है। कैलिब्रेटर की वैल्यू सीआरपी में रफली मैंने अभी देखा था कुछ लॉट जो हमारे यहाँ पे चल रहे हैं 120 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर है। सीआरपी के केस में लास्ट टाइम मुझे याद है कि वैल्यूज कैलिब्रेटर की करीब 60 मिलीग्राम पर थी, पर डेसीलीटर। ये वैल्यू हमारी नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज्यादा है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमको बहुत अच्छा ग्राफ दिखना चाहिए व्हेन वी डू द कैलिब्रेशन। अभी कैलिब्रेटर की डेल्टा ओडी पर मिनट, ये काइनेटिक केमिस्ट्री है, ऑब्वियसली देयर इज एन इंक्रीज इन ओडी। तो ये ओडी करीब करीब 0.1 मिली ओडी और 0.1 ओडी पर मिनट के हिसाब से ये बदलती है, इंक्रीजिंग ओडी की तरफ से। अगर मिली आयु में बोले तो 100 मिली आयु, 1 ओडी इज 1000 मिली आयु, सो 0.1 ओडी इज 100 मिली आयु। ये क्लियरली ग्राफ में दिखाई देता है। और यही लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था कि ग्राफ तो हमारे को कैलिब्रेशन का बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट्स पेशेंट के नेगेटिव आ जाते हैं कभी कभी। अभी नॉर्मल वैल्यू आरए के अंदर 5 या 6 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल होती है, विच मीन्स कि ये जो डेल्टा ओडी पर मिनट, एक रफ अंदाज दिया जा रहा है कि डेल्टा ओडी पर मिनट फॉर सैंपल वर्सेस कैलिब्रेटर, डेल्टा ओडी सैंपल की बहुत बहुत कम होती है, 4, 5, 6, 7। ऐसे केसेस के अंदर फोटोमेट्रिक फ्लक्चुएशन कभी कभी एनालाइजर के अंदर
नेगेटिव पॉजिटिव साइड में जाते रहते हैं बिकॉज ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन। और उस लो वैल्यू सैंपल के अंदर अगर 3 या 4 डेल्टा ओडी, दैट मीन्स 3 या 4 मिली डेल्टा ओडी, मिली, ये हमारी बढ़ रही है और 5 डेल्टा ओडी से एनालाइजर ने फ्लक्चुएशन नेगेटिव साइड में कर दिया, तो हमको रिजल्टेंटली -1 डेल्टा ओडी मिलेगी। ये -1 हमको कभी रिजल्ट्स देता है नेगेटिव साइड में, बट इनडायरेक्टली ये हमको यही बोल रहा है कि ये नेगेटिव रिजल्ट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल के बराबर ही है, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और आपको उसको रिपीट करके देख लेना चाहिए। और एनालाइजर के अंदर अगर हमारे को फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रहे हैं तो वोल्टेज कैलिब्रेशन या फ्लो सेल क्लीनिंग वगैरह की तरफ ध्यान देके और उसकी सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है। ओके सर, ये दिस इज व्हाट आई फेल्ट, द आंसर इज राइट ऑन द टर्बिडियोमेट्रिक इम्यूनोएसे। जो अभी आरए का है, पहले सीआरपी का था, आंसर इज सेम। नॉर्मल वैल्यू, कैलिब्रेटर वैल्यू, डेल्टा ओडी पर मिनट एंड इंस्ट्रूमेंट फ्लक्चुएशन, इन चार के अंदर वो 1 या 2 डेल्टा ओडी का फर्क जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, विच इज टू बी इग्नोर्ड एज लॉन्ग एज आपका कैलिब्रेटर फैक्टर सही आ रहा है तो। ओके, वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि मैंने इस केस के ऊपर बहुत काम किया था। ये है कि ग्लूकोज की वैल्यू किसी पेशेंट के अंदर कभी कभी 8 या 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आती है। ये क्वेश्चन ये है कि वी नीड टू नो इन व्हाट कंडीशन दिस कैन हैपन। ओके, लेट्स सी द आंसर। सर, पेशेंट के अंदर तो ग्लूकोज की वैल्यू 8, 10, 7, 8, 9 तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज पेशेंट को अगर ऐसा वैल्यू आ रहा है तो वो तो आईसीयू में होना चाहिए, वो हाइपोग्लाइसेमिक कोमा के अंदर वहां पे मिलेगा। लेकिन ऐसे रिजल्ट्स क्लिनिकली पॉसिबल है। और क्लिनिकली कैसे पॉसिबल है कि अगर सैंपल, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी ने, लैब टेक्नीशियन ने ब्लड सैंपल भेज दिया है लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए और वो सैंपल है नॉर्मल ईडीटीए या सिट्रेट में कलेक्ट किया, ऑक्सलेट में कलेक्ट किया हुआ ब्लड, और वो भी होल ब्लड है, प्लाज्मा सेपरेशन के लिए ऐसा ही रखा हुआ है। पेशेंट आया है सुबह सुबह, वो 7 बजे फास्टिंग ब्लड शुगर देने के लिए अपना सैंपल दे के गया है और हमने वो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करके आफ्टरनून के टाइम पे हमने एस्टिमेशन के लिए लगाया उसको। सर, एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि जो होल ब्लड है, जो एडीटीए या और इसके अंदर किया गया है, जो नॉन फ्लोराइड बल्ब हैं, वहां पे आरबीसी भी उसके अंदर बैठी हुई है और ये आरबीसी को भी भोजन चाहिए। वो उनका भोजन है, द फूड ऑफ द आरबीसी इज ग्लूकोज। और ये करीब करीब 7 मिलीग्राम % पर आवर के हिसाब से ये ग्लूकोज आरबीसी कंज्यूम करती रहती है उस सैंपल के अंदर। हमने सैंपल सुबह 7, 8 या 9 बजे कलेक्ट किया था पेशेंट का। टेस्टिंग हमारा चल रहा है दिन को 2, 3 बजे के आसपास, जब एंटायर लॉट ऑफ ऑल द पेशेंट्स हैव कम, अब उनका पूरा टेस्टिंग लगाया गया और ऐसे केसेस के अंदर जाके 5 या 6 या 7 घंटा नॉन फ्लोराइड बल्ब के अंदर उस पेशेंट का ब्लड पड़ा हुआ है, आरबीसी ने ग्लूकोज कंज्यूम किया है। 50, 60 अगर उसकी वैल्यू रही होगी पेशेंट की, तो कम से कम 30 या 40 मिलीग्राम तो आरबीसी ने कंज्यूम कर लिया बाय द टाइम यू स्टार्ट डूइंग द टेस्ट। और वहां पे ये प्रॉब्लम आएगी कि हमको रिपोर्टेबल रिजल्ट्स 8, 9 ऐसे ही मिलेंगे। वी हैव नथिंग बट एल्स टू डू कि हमको ये ध्यान रखना पड़े कि जब भी हम ब्लड कलेक्ट करते हैं ग्लूकोज के लिए, वो हमको फ्लोराइड बल्ब में ही कलेक्ट करना चाहिए, ताकि फ्लोराइड इज एन इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, पहला ही एंजाइम को वो इनहिबिट कर देता है, ताकि ग्लूकोज का कंजम्पशन पड़े हुए होल ब्लड के अंदर नहीं होता और आप चाहे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद भी विदाउट सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आपका ग्लूकोज का वैल्यू नहीं बदलेगा। ऐसे केसेस के अंदर स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है और ये प्रिकॉशन मोस्ट लाइकली विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि 7, 8, 9 का रिजल्ट क्यों आ रहा है। आपको पेशेंट को दोबारा फास्टिंग ब्लड लेना पड़ेगा फ्लोराइड बल्ब के अंदर।
Sir, I hope I've been able to answer this situation. नेक्स्ट एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मुझे ऐसे आए जिसको मुझे आंसर ही मालूम नहीं है कि ये क्या है, रिएजेंट कन्वर्जन। और ये ऐसे क्वेश्चन 2 बार आए हैं। आई लेफ्ट इट टू क्वेश्चन मार्क की जो जो भी ये आंसर, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा इलाबोरेट करेंगे तो मैं उसका आंसर दे पाऊंगा, बिकॉज खाली इतने से एम्बिगुअस क्वेश्चन से मुझे मालूम नहीं कि क्या जवाब देना चाहिए। सो आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिएजेंट कन्वर्जन आई लीव इट टू यू, दैट आप ज्यादा क्लैरिफाई करके पूछेंगे तो मेरे को समझ में आएगा क्या आंसर देना है। ओके सर, एक क्वेश्चन, और ये 2 बार आया है। पिछली बार भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इस बार भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मुझे लग रहा है कि ये एक बर्निंग प्रॉब्लम है पूरी आईवीडी इंडस्ट्री के लिए कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज के रिएजेंट के अंदर कलर डेवलपमेंट, दैट मींस येलो हो जाना, ये एक बर्निंग प्रॉब्लम है पूरी इंडस्ट्री के लिए। Alkaline phosphatase color development. Question number 2. We are facing unexpected color development in alkaline phosphatase reagent during the shelf life. As per product design, reagent should remain stable. कलर फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लॉट्स में ये ऑब्जर्व किया जाता है कलर डेवलपमेंट हो रहा है कि this is impacting product stability and QC acceptance. We suspect possible factors such as pH drift, raw material variability, contamination, storage condition, but the exact root cause is not yet confirmed. सर ये हम पहले भी कर चुके हैं और इस बार भी हम बहुत डिटेल में इसके अंदर जाएंगे कि ये रिपीटेडली ये क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको इसका आंसर देना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज का प्रिंसिपल क्या है। हम अगर अपने रिएजेंट से दोस्ती अच्छी कराएंगे तो हमको उनके आंसर्स भी समझ में आएंगे कि कैसे मिसबिहेव करता है और कैसे इस मिसबिहेव को बचाना भी चाहिए। पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेटेज मींस एल्कलाइन फॉस्फेटेज हैज सबस्ट्रेट पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट। पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू पैरानाइट्रोफिनॉल जो कि येलो कलर कंपाउंड है। ये पार्ट हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे। एल्कलाइन फॉस्फेटेज हमारी बॉडी में जो होता है बड़ा नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है। सभी तरह के फॉस्फेट्स को आने वाले सबस्ट्रेट में से तोड़ के फॉस्फोरस अवेलेबल करता है बोन डेवलपमेंट और वेरियस अदर बायोकेमिकल फंक्शंस इन द बॉडी। तो इस एंजाइम को बहुत स्ट्रॉन्ग फॉस्फेटेज नहीं बोला जा सकता, बड़ा नॉन स्पेसिफिक है और वीक एंजाइम है। ये फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ता है और सारे वीक फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ के इसका अवेलेबल करता है। अभी ये देखना है कि हमको ये वीक फॉस्फेट क्यों चाहिए, बिकॉज एंजाइम इज नॉन स्पेसिफिक। था हमको भी पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स ने पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट के सोडियम सॉल्ट या लिथियम या ट्रिस सॉल्ट बनाए जिनकी अलग अलग सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स लाइट एंड हीट डिग्रेडेशन। ये वीक सबस्ट्रेट है, डिग्रेड तो होगा ही होगा, लेकिन सॉल्ट बना के उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन अगर इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो एल्कलाइन फॉस्फेट्स की एक्टिविटी मेजर ही नहीं की जा सकती। सो पीएनपीपी, सोडियम लिथियम या ट्रिस सॉल्ट कोई भी हो, लेकिन वो लाइट और हीट से डिग्रेड होके पैरानाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट होता ही होता है। ये लाइट और हीट कंडीशन हर एक लैब की हर एक दिन पे अलग अलग हो सकती है। किसी टाइम किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जा रहा है, किसी टाइम पे कितनी लाइट है, बरसात के दिनों में अलग तरह की लाइट है, कभी रात के दिन पे अलग लाइट है, ज्यादा लाइट्स लगा रखी है, वेरिएबल कंडीशंस है लैब की। और ये कलर डेवलपमेंट भी वेरिएबल होता है। ये एक्चुअली होने वाली चीज है जो हो रही है। बचाने का कैसा है वो अपन नेक्स्ट पे देखेंगे। ओके, हाउ टू रिड्यूस दिस येलो कलर प्रॉब्लम। ओके, अभी हमने कुछ 4-5 पॉइंट पहले भी कवर किए थे, इस बार भी इसको कवर करता हूं कि हमको इसको डार्क कंटेनर में स्टोर करना चाहिए जैसे ही वर्किंग सॉल्यूशन बनता है तो, या अगर लिक्विड है तो R2 को भी डार्क कंटेनर में स्टोर करिए, लाइट मिनिमाइज्ड, एंड कीप इट अंडर लो टेम्परेचर एज फार एज पॉसिबल। जितना जल्दी आप इसको रूम टेम्परेचर पे लाए हैं, लाइट में लेके आए हैं, कंज्यूम कर लीजिए। आप इसको ऑटो डिग्रेडेशन का चांस जितना हो सके उतना कम देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर टैबलेट एंड ड्राई पाउडर, टैबलेट एंड डाइल्यूएंट का कॉम्बिनेशन है तो रिकॉन्स्टिट्यूट उसी दिन करिए जिस दिन आपको जरूरत है, 1 या 2 दिन के लिए। ओके सर, देन अगर R1 R2 का है तो R2 को रूम टेम्परेचर पे तभी लाइए जब आपको उसको यूज कर रहा है।
ऐसा नहीं है कि इसका वर्किंग सॉल्यूशन है, सारे रिएजेंट हमने लैब में लगा के रखे हैं, अल्काइन फॉस्फेटेस को भी लैब में लगा के रख दिया। वो रूम टेम्परेचर पे आपका एस्टिमेशन होगा 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और आपने दिन भर उसको एक्सपोजर करके रखा हुआ है, दे आर गोइंग टू टर्न येलो कलर। आपको उसको अवॉइड करना है, ज्यादा एक्सपोजर नहीं है तो, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं जा सकता, अदरवाइज द होल पर्पस विल गेट डिफीटेड। दूसरा एक जो बड़ा प्रैक्टिकल चीज है कि अगर हमारा वर्किंग सॉल्यूशन या R2, इसको हम स्मॉलर वॉल्यूम में डार्क कंटेनर एंड क्लीन कंटेनर में डिवाइड करके फ्रीज कर दें, और हम उतना ही निकालें जितना उस दिन की जरूरत है, तो हम उसके ब्रेकडाउन को अरेस्ट कर सकते हैं। रिजल्ट हमेशा आपकी एल्कलाइन फॉस्फेटेस की केमिस्ट्री, इनिशियल ओडी विल स्टार्ट अराउंड 0.3 और 0.4, क्योंकि ज्यादातर मैन्युफैक्चरर ये बोलते हैं कि अगर अल्कलाइन फॉस्फेटेस की स्टार्टिंग ओडी या इनिशियल ओडी 0.7 से ऊपर है, डिस्कार्ड द रिएजेंट। नाउ अगर 0.7 से ऊपर किसी का है और वो स्टार्ट करता है, तो उसके पास में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक लीनियरिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही कम वैल्यू का एस्टिमेशन पॉसिबल होता है, अगर रिएक्शन काइनेटिक्स और फॉर्मूला को अप्लाई किया जाए तो। और ऐसे केसेस के अंदर जब चिल्ड्रन का एस्टिमेशन हो रहा है एल्कलाइन फॉस्फेटिक का, जिनकी नॉर्मल वैल्यू इटसेल्फ इज अराउंड 700, लीनियरिटी ही नहीं कवर कर रही है उतना, तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो बेस्ट इज टू स्टार्ट एट द लोअर। मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कभी लोग ट्राई करें कि अगर आपने ब्लैंक को उठा के और ब्लैंक सेट टू जीरो कर दिया, बिकॉज इंक्रीजिंग काइनेटिक काइनेटिक केमिस्ट्री है, अगर ब्लैंक को आप जीरो भी कर सकते हैं, बट ब्लैंक को जीरो करने के टाइम पे आपका रिएजेंट प्रॉब्ली गेट कंज्यूम्ड एंड गोज इनटू द वेस्ट, क्योंकि वो एस्पिरेट होके निकल गया है सेमी ऑटो के लिए। बट ये मैंने ट्राई किया नहीं, लेकिन आप ये करके देख सकते हैं कि रिएजेंट के ब्लैंक को आप जीरो सेट करके अगर केमिस्ट्री डन करेंगे, फिर भी एक क्वेश्चन तो हमेशा ही रहेगा कि क्या आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट अवेलेबल है टू कवर द लिनियरिटी ऑफ द एंटायर लिनियरिटी लेवल। ओके, तो आंसर यही है, डार्क में स्टोर करें, लो टेम्परेचर पे स्टोर करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको कंज्यूम करें, रिकॉन्स्टिट्यूट उतना ही करें जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जब चाहिए तभी रिकॉन्स्टिट्यूट करें, और अगर हो सके तो छोटे छोटे वॉल्यूम में, जो आपका एक एक दो दो चार चार टेस्ट के लिए हैं, उतने में उसको डिवाइड करके रूम टेम्परेचर पर रखने के बजाय उसको डीप फ्रीजर में रख दीजिए, अरेस्ट हो जाएगा जब चाहिएगा। वंस एंड फ्रीजिंग एंड थॉइंग इज ओके। ये कोई एंजाइम नहीं है, खाली पैरानाइट्रोफिनॉल है, फिनाइल फॉस्फेट है, ये चलेगा। ओके सर। So PNPP to reduce the yellow reagent problem, maximum usage of the reagent for reportable results. These measures will minimize the wastage. और ज्यादा से ज्यादा रिएजेंट आपका रिपोर्टेबल रिजल्ट्स के अंदर जाएगा, विच इज अ प्रॉफिट ऑफ ए लेबोरेटरी। ओके सर, अभी वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी। अभी जनरल क्वेश्चन आया कि प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर एक क्वेश्चन है, मैंने इसको सोचा कि मैं इसको अवॉइड करूं, कि जब तक कि कोई स्पेसिफिक चीज नहीं आ जाती है, लेकिन अपना वेबिनार का पर्पस ही खत्म हो जाता है अगर हम ऐसी वेग और जनरल चीज के ऊपर भी अगर अपन बात नहीं कर पाए तो मैंने इसको क्या लिया है कि प्रोडक्ट क्वालिटी का अगर कोई क्वेश्चन है, इसको एड्रेस करना चाहिए, और मैं इसको एड्रेस इस तरीके से करूंगा कि मैं बड़ी होलिस्टिक और नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोडक्ट क्वालिटी को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। सर, मैं प्रोडक्ट क्वालिटी किसको बोलूंगा? पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्ट रिएक्शन तभी करे जब उसको सैंपल दिया जाए या कैलिब्रेटर दिया जाए। जब उसको सैंपल नहीं दिया जा रहा है तो वो प्रोडक्ट को रिएक्शन नहीं करनी है। दैट मीन्स द रिएजेंट ब्लैंक, हम कलरीमेट्री की ही बात कर रहे हैं ना, तो रिएजेंट का ब्लैंक कलर इज ब्लैंक, वो ब्लैंक अपने आप पड़े पड़े नहीं बदलना चाहिए। एक बड़ी क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए कि sample reacts only when, I mean, the reagent reacts only when sample is provided. If sample not provided, do not react. Keep stable yourself. जब जरूरत है काम करो, नहीं जरूरत है मत काम करो। Reagent blank will remain arrested. Reagent का दूसरा पॉसिबिलिटी, reagent का composition या उसके characteristics, that means performance characteristics should remain stable over the shelf life of the reagent.
इतना ओडी, इतना फैक्टर, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दे शुड रिमेन स्टेबल ओवर शेल्फ लाइफ क्लेम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। अगर ये चीज कंप्लाई करती है कि कंपोजिशन वक्त के साथ में नहीं बदल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदल रही है, देन द प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड। अभी कंपोजिशन आप मुझे पूछेंगे कैसे बदल सकता है, बड़ी सिंपल सी चीज है। कोई कंपोनेंट किसी रिएजेंट कंपोजिशन के अंदर ऐसे डाले जाते हैं जो पेरिशेबल है वक्त के साथ में। जैसे एंजाइम्स हैं, वक्त के साथ में उनकी वैल्यूज बदलती जाती है, एंजाइम्स कीप ऑन डिग्रेडिंग। कभी कोई डाई दी जा रही है जो डाई खुद लाइट सेंसिटिव है और वो अपनी वैल्यू बदल रही है, उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है। दिस शुड नॉट हैपन एज लॉन्ग एज देयर इज अ शेल्फ लाइफ अवेलेबल इन द किट, इफ स्टोर्ड अंडर प्रॉपर एंड रिकमेंडेड कंडीशन। तो ये एक प्रोडक्ट क्वालिटी का पैमाना है। अब मैं बोलूंगा कि परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एक लेबोरेटरी के आइडियल और एक्सेप्टेबल सेटअप कंडीशन के अंदर एक सेटअप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा डिस्प्ले होते रहें। लेट मी एक्सप्लेन दिस हाउ इट हैपन। एक लेबोरेटरी सेटअप के अंदर थोड़ा बहुत तो वेरिएशन टाइम, टेम्परेचर और एयर कंडीशनिंग का, लाइट कंडीशन का, डस्ट कंडीशन का होगा ही। बट अंडर एक्सेप्टेबल लेबोरेटरी कंडीशन, अगर रिएजेंट का परफॉर्मेंस भी एक्सेप्टेबल ही रहे, फैक्टर्स हमेशा कांस्टेंट आते रहें, क्लिनिकल पैरामीटर्स में हमारे को क्वालिटी कंट्रोल जब रन किए जा रहे हैं तो उनकी वैल्यू हमको कॉन्स्टेंटली एक्सेप्टेबल रेंज या ±2 SD जो लेवी जेनिंग चार्ट से मिलता वो हमको मिलता रहे, ओपन वायल स्टेबिलिटी के अंदर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली सेम दिखाई दे डे आफ्टर डे, ये मैं प्रोडक्ट क्वालिटी बोलता हूं। अभी मैं वापस जाऊंगा इस प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर थोड़ा और बात करने के लिए कि जो रिएजेंट वक्त के साथ में टर्बिडिटी पैदा करते हैं, जिनके ब्लैंक बदल जाते हैं, या जिनका रिएक्शन स्पीड डिक्लाइन होती है वक्त के साथ में, वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। बोलने के लिए बहुत अच्छा है कि प्रोडक्ट क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, बट इट इज अ फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन स्टोरेज एंड कंटामिनेशन ड्यूरिंग द यूसेज। ये एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस एक अच्छी क्वालिटी का होगा तो मैं इसको प्रोडक्ट क्वालिटी बोलूंगा। अगर कहीं प्रोडक्ट क्वालिटी खराब है तो इनमें से ही कहीं ना कहीं एक जगह पे कोई ना कोई चीज कंप्रोमाइज हो रही है। ओके सर, वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is actual onboard stability of creatinine enzymatic and creatinine Jaffe method and reagent stability after onboard? ये दो अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन आंसर्स इनका सिमिलर है, इसलिए मैंने इसको कंबाइन करके इसको लेने का कोशिश किया है। ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी किसको बोलते हैं? फंक्शन ऑफ रिएजेंट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अल्टर्ड है, बदल गया है, तो ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी नहीं है। ये कितने दिन के बाद में बदलेगा, तब तक रिएजेंट की ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी डिफाइन की जा सकती है। किसी रिएजेंट की 10 दिन है, किसी की 5 दिन है, और हमेशा मैन्युफैक्चरर से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी को आपके रिएजेंट के साथ में डिफाइन करके हमको बताइए। सर मेरा ये कहना है कि ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी तो रिएजेंट के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एक पर्टिकुलर क्वालिटी एस्टैब्लिश कर दी जाती है। उसके बाद में उसकी क्वालिटी या उसके परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को बदलने के लिए कौन से फैक्टर्स है, वो मैन्युफैक्चरर के हाथ में नहीं है। वो रिएजेंट लेबोरेटरी में कैसे यूज किए जा रहे हैं उसके हाथ में है। और वो कौन कौन सी कंडीशन है कि अगर जो बॉटल है वो एनालाइजर के ऊपर खुली पड़ी हुई है, उसमें पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल थ्रू द एयर इन द ओपन माउथ बॉटल कितने जा रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि वो लेबोरेटरी का एनवायरनमेंट कितना डस्ट फ्री है। एयर कंडीशन है, नॉन एयर कंडीशनड है, डस्ट पार्टिकल है, वैक्यूम क्लीनर किया जा रहा है कि सिर्फ नॉर्मल झाड़ू पोछा किया जा रहा है, झाड़ू पोछे में डस्ट पार्टिकल स्प्रेड होते हैं इधर उधर, वैक्यूम क्लीनर से वो अब्सॉर्ब किए जाते हैं। तो टू डिफरेंट फंडामेंटल्स ऑफ क्लीनिंग। गैसेस कितनी है जो लेबोरेटरी के एनवायरनमेंट में है, जो ओपन वायल के अंदर
बाय द रिएजेंट गेट्स कंज्यूम्ड इनसाइड। इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा कि जो वायल्स, हिताची है या और कोई भी एनालाइजर की जो फुली ऑटोमेटेड है, उनकी माउथ की ओपनिंग को मिनिमम नैरो रखा जाता है। ये नैरो रखने का रीजन ही यही है कि आपको एयर कंटामिनेशन कम से कम मिले और पार्टिकल्स भी कम से कम जाएं, गैसेस भी कम से कम एब्जॉर्ब हो। दैट इज व्हाई दीज बॉटल्स आर नैरो माउथ। देन दूसरा होता है कि हर एक एनालाइजर के ऊपर हम ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज फॉर फुली ऑटोमेटेड ओनली। तो वहां पे एक रेफ्रिजरेशन कंपार्टमेंट जो कोरोजल का अंदर टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है, वो टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से नीचे है तो रिएजेंट के ऊपर थर्मल शॉक नहीं मिलेगा। रिएजेंट विल बिहेव एज दे वर ओरिजिनली डिजाइन टू बी। लेकिन ये थर्मल शॉक को बचाना जरूरी है। कई एनालाइजर मैंने पुराने टाइम पे देखे थे कि जिनके अंदर ऑनबोर्ड के अंदर रेफ्रिजरेशन कंपार्टमेंट ही नहीं होता था, वो जस्ट कोरोजल विदाउट एनी रेफ्रिजरेशन, या किसी का रेफ्रिजरेशन है और वहां पे वो काम नहीं कर रहा है बराबर। सो दैट चेंजेस द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएजेंट। दूसरा है कि अगर रिएजेंट और लेबोरेटरी टेम्परेचर बहुत हाई है और ड्राइंग ऑफ रिएजेंट इज हैपनिंग एट द माउथ ऑफ द बॉटल, तो वो केमिकल वहां पे ड्राई होके छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स के केमिकल के प्रेसिपिटेट्स अपने माउथ पे बना लेंगे, और वो प्रेसिपिटेट या जो भी पार्टिकल्स हैं वो रिएजेंट के अंदर गिर जाते हैं ऑन ये रिपीट यूसेज। दे कम इनटू द लाइट पाथ व्हाइल डूइंग द टेस्टिंग। ये आपका फ्लो सेल के अंदर रिजल्ट्स में वेरिएशन देता है। और हम ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी तो वही बोल रहे हैं जहां हमारा क्यूसी की वैल्यू हमेशा या फैक्टर हमेशा सेम आता रहे, और वहां पे ये जो लाइट में पड़े हुए पार्टिकल्स हैं, चाहे वो गैसियस से आ रहे हों, चाहे वो पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर से आ रहे हों, या ड्राइंग ऑफ द रिएजेंट से आ रहे हो, ये अगर अंदर रिएजेंट में पहुंच गए और ये आपके 20 30 माइक्रोलीटर 50 माइक्रोलीटर 100 माइक्रोलीटर जो भी वॉल्यूम आप रिएजेंट का ले रहे हैं R1 या R2 का, और वो लाइट पाथ में आ गया, तो ही इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ द फैक्टर या क्यूसी। और यही चीज ऑन बोर्ड स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। रिएजेंट का जो अगर टेम्परेचर थर्मल शॉक नहीं है तो रिएजेंट इज एज गुड एज व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड व्हाट इज लाइंग इन योर रेफ्रिजरेटर। तो व्हाई शुड इट हैव ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी इशू? हाँ, दूसरा चीज है कि आपने ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी के लिए आपने एक कैलिब्रेटर लगाया है, और वो कैलिब्रेटर अगर पुराना है और उसके बाद में उसकी वैल्यू बदल रही है, यू हैव टू एंश्योर दैट द कैलिब्रेटर इज फ्रेश एवरी टाइम, या स्टैंडर्ड इज फ्रेश एवरी टाइम। और अगर फैक्टर से चल रही है केमिस्ट्री, तो ये पार्टिकल्स हैं या गैसेस हैं या थर्मल शॉक है या particle not from the air but even the drying of the reagent at the tip of the bottle falling back into the bottle, please take care of these factors। ऑन बोर्ड स्टेबिलिटी कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है, इसको अचीव किया जा सकता है अनलेस द रिएजेंट्स आर ऑफ हॉरिबल क्वालिटी, जिसका लॉट टू लॉट वेरिएशन खुद का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज्यादा है। बट 99.9% इंडस्ट्रीज के अंदर आफ्टर FDA स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ISO 13485, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिएजेंट्स आर थॉरोली कंट्रोल्ड ऑफ having a performance guaranteed the same till the shelf life. Okay, sir. We take the next question. Okay, we take the next situation to how to improve this onboard stability. There's one more slide which I missed out. Low temperature of storage, that means आपको कोरोजल का टेम्परेचर बराबर मेंटेन होना चाहिए। Reagent, as far as possible, keep it in the original container so they don't change their characteristics by container contamination. कवर्ड कोरोजल ऑफ द एनालाइजर जिसके अंदर डस्ट और टेम्परेचर लॉस नहीं हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, क्योंकि हम एक क्लिनिकल सेटअप में काम कर रहे हैं, एक लेबोरेटरी है, तो उसका अपना एक वाइवल काउंट जरूर होगा। बैक्टीरियल लोड, बायो बर्डन ऑफ ए लेबोरेटरी, ये बायो बर्डन मेनी टाइम्स कॉजेस कंटामिनेशन इन द ओपन वायल्स। अगर कोरोजल का ढक्कन खुला है या बॉटल खुली है या और कोई भी रिएजेंट जो सेमी ऑटो में भी अगर घूम रहा है, तो ये बैक्टीरिया अंदर जाके उस रिएजेंट के परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हैं। ऑल्दो ऑल रिएजेंट्स हैव एंटीबैक्टीरियल स्टेबलाइजर्स, लेकिन इस वाइवल काउंट को इन लेबोरेटरी सेटअप आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी। आप कोई एक कवर्ड यूवी लाइट आपकी लैब में लगा दीजिए, या हॉस्पिटल के लैब सेटअप में
एक कवर्ड यूवी लाइट जिसके अंदर लाइट बाहर नहीं आ रही है कि इट कॉजेज द हार्म टू द स्किन ऑफ ऑपरेटर, लेकिन उसके अंदर एक कवर्ड लाइट जिसके थ्रू एयर फ्लो हो रहा है, बिकॉज देर इज अ fan associated with it. So it is constantly taking the air from the lab, circulating it, and passing it to the other side of the setup of the UV light. उससे आपका continuously operation of 8 to 10 hours will reduce the bacterial load in the लेबोरेटरी सेटअप। ओवरऑल वाइवल काउंट नीचे आने का सबसे बड़ा फायदा आपकी रिएजेंट परफॉर्मेंस पे भी आएगा, हेल्थ पे भी आएगा, दो ऑफिशियल्स हु आर ऑपरेटिंग इन द लैब, बिकॉज हम बैक्टीरिया को अवॉइड नहीं कर सकते। वी हैव बीन टेकिंग वेरियस टाइप ऑफ सैंपल्स जिसके अंदर बैक्टीरिया होते ही हैं। लेबोरेटरी सेटअप में आदमी भी लेके आते हैं, बिकॉज स्टेराइल कंडीशन में कोई भी लेबोरेटरी सेटअप नहीं चलता है, वो नॉर्मली एक एक्सेप्टेबल एनवायरमेंट में ही चलता है। बट दीज फ्लो यूवी फ्लो लाइट रिड्यूसेस वाइवल काउंट। ओवरऑल आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन लंबे टाइम में आपको मालूम चलने लगा कि आपकी हेल्थ, आपकी लेबोरेटरी के रिजल्ट्स, आपकी लेबोरेटरी के हाइजीन, एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग। एंड हमने कई बार ये हमने यूवी लाइट, ऐसा कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है कि हमको खरीदने जाना पड़ता है। एक छोटा चेम्बर आप बना के और उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन एक साइड में और एक साइड में यूवी लाइट है 3-4 फीट की, और एक साइड में वो जा रही है अंदर, हवा कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट हो रही है, डायरेक्ट लाइट इज नॉट एक्सपोज टू एनीबॉडी। दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द वाइवल काउंट। एज ए रिजल्ट आपका लेबोरेटरी के सारे रिजल्ट्स एंड ह्यूमन हेल्थ एवरीथिंग विल स्टार्ट इंप्रूविंग। सर, वी टेक द नेक्स्ट कैटेगरी, एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज वाई फिल्टर गेन्स ऑफन गो आउट ऑफ रेंज। ये क्वेश्चन था, मेरे को इसके लिए थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ा, बिकॉज इसमें थोड़ी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। व्हाट इज द फैक्ट फिल्टर गेन, और एक कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से मैंने इसका आंसर ढूंढा और मुझे आंसर ये दिखाई दिया कि फिल्टर गेन इज नथिंग बट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन फोटो सेंसर आफ्टर पासिंग थ्रू द वेवलेंथ फिल्टर। इसको हम फिल्टर गेन बोलते हैं। मीन्स फोटो सेंसर कितनी इंटेंसिटी से उसको पकड़ पा रहा है जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है। नाउ सेकंड, हमारे जितने भी एनालाइजर के फिल्टर्स हैं या इवन फुली ऑटो एनालाइजर के अंदर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग या जो भी कुछ है, उसके अंदर डस्ट कलेक्शन होता ही होता है। ऑल लेबोरेटरीज आर एज फार एज पॉसिबल डस्ट फ्री इज गुड, बट विद द टाइम उसके ऊपर डस्ट जमती है, फिल्टर गेन्स विल फॉल। अभी कोई सेमी ऑटो एनालाइजर है जिसके अंदर फिल्टर व्हील्स हैं, आप वेवलेंथ चेंज करते हैं, फिल्टर भी मूव होता है, मूव होगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई चीज उसके ऊपर, डस्ट के अलावा छोटे मोटे स्क्रैचेस भी आ जाएंगे, ग्रोथ भी आएगी। ये चीजें हमारे फिल्टर के गेन को कम कर देती है। दैट मीन्स द लाइट फॉलिंग ओवर द फोटो सेंसर आफ्टर पासिंग थ्रू द फिल्टर, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। वेवलेंथ शायद चेंज नहीं हो, 505 नैनोमीटर 505 ही बोलेगा, लेकिन अगर 100 आ रही है तो शायद 90 ही पड़ रही हो, वो गेन कम हो गया उसका। सो वी हैव टू टेक केयर दैट पीरियोडिक क्लीनिंग, अगर स्क्रैचेस है तो रिप्लेसमेंट ऑफ फिल्टर इज ओनली वे टू इंप्रूव द गेन। आपका एनालाइजर अंडर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज सर आइए, इसको खोलिए, फिल्टर्स व्हील को पूरा क्लीन करिए, या जो फॉल्टी और जेल वाले फिल्टर्स होते हैं स्पेशली, उनमें तो माइक्रोबाइल ग्रोथ आ जाती है, क्रैक दिखाई देते हैं अंदर, इनको आप रिप्लेस करिए सो दैट माय फिल्टर गेन इंप्रूव्स एंड मेरे सारे के सारे परफॉर्मेंसेस जिनका गेन अच्छा है तो रिजल्ट्स भी और लिनियरिटी भी सारी आती रहेगी। ओके, दिस इज ऑन द फिल्टर गेन इज कंसर्न। नाउ लेट्स टेक एक जनरल कैटेगरी क्वेश्चन आया, एप्लीकेशन कॉल्स। ये सेल्समैन का कंसर्न है, ऑब्वियसली ब्रॉड आंसर रहेगा। ओके, आप एक एप्लीकेशन कॉल को या तो अटेंड करेंगे या अवॉइड करेंगे। अटेंड करने के लिए आपको उसका पूरा प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए कि ये केमिस्ट्री काइनेटिक है, इसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
और प्रोडक्ट का नॉलेज ला कि उसकी लीनियरिटी कितनी है या प्रोग्रामिंग करने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो यू विल टेंड टू अवॉइड द एप्लीकेशन कॉल, बिकॉज कस्टमर ने तो ये बोल दिया है कि मेरा रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है, सो आपको एप्लीकेशन कॉल पर जाना ही है। सो आपको ये ध्यान देना है कि आइदर आपका कस्टमर इस सारे प्रोग्रामिंग को और प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ रहा हो, या आप ऑनलाइन उसको लेके और यही गाइडेड ऑनलाइन टू डू द सेम। अगर ये नहीं किया और आपने अवॉइड करके बैठे हैं, इट इज गोइंग टू कॉज यू ट्रबल शूटिंग कंटिन्यूड इन द लैब। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इंस्ट्रूमेंट फंक्शनिंग तो है ही है, हमको ध्यान देना ही है कि उसकी फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी इज क्रिटिकल टू नो द ट्रबल शूटिंग, बिकॉज उसको अल्टीमेटली वो क्या बोल रहा है ट्रबल शूटिंग के अंदर कि मेरा रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे। प्रोग्राम गलत हो सकता है, वैल्यूज गलत हो सकती है, प्रोग्राम अल्टर्ड हो सकता है, आपके कैलिब्रेटर्स की वैल्यू बदल चुकी है, आपके रिएजेंट ब्लैंक्स बदल चुके हैं, आपका टाइमिंग किसी ने चेंज कर दिया है कि कितनी साइकिल के बाद में वो रीडिंग आनी चाहिए अगर एंड पॉइंट केमिस्ट्री है तो, या डिले टाइम। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्रोडक्ट नॉलेज आईएफयू के अंदर मिल जाते हैं। सो अगर आपको उसके पैरामीटर्स सेट करने का नॉलेज है और केमिस्ट्री के पैरामीटर्स आपको मालूम है, तो आप खुद जाके एनालाइज आई मीन कर सकते हैं कि कहाँ एरर हो रही है, या आप उसको फोन पे गाइड कर सकते हैं कि प्रोग्राम सुनाइए सर, वन बाय वन आई कीप ऑन टेलिंग यू बाइक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक है, कैलिब्रेटर वैल्यू क्या डाली है, साइकिल टाइम क्या डाले हैं, आपने लो वैल्यू हाई क्या डाली है, हाई वैल्यू क्या डाली है, लिनियरिटी लिमिट क्या डाली है, रिपीट ऐसे की वैल्यू क्या डाली। ऑल दीज एप्लीकेशन कॉल का हिस्सा है। प्रोडक्ट नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एज फार एज पॉसिबल आप पर्सनली उनकी लैब में जाके अगर एप्लीकेशन कॉल्स को अटेंड करेंगे तो फोटोमेट्रिक्स भी समझ में आती है कि उनके यहाँ पे पहले कितने रिजल्ट्स थे, लेविजनिंग चार्ट क्या बोल रहा है, और आज की तारीख में उनके रिजल्ट्स के अंदर प्रॉब्लम है कहाँ पे। सो एप्लीकेशन कॉल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हैव प्रोडक्ट नॉलेज, इंस्ट्रूमेंट नॉलेज एंड ऑपरेशनल कंडीशंस। ओके सर। Avoiding the calls, as I said, the last line, avoiding the application call results into product rejection, hence the loss of sale. This is no answer. आप अवॉइड करेंगे बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है, अल्टीमेटली आपका सेल गया, वहां से आपको प्रोडक्ट रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। ओके, दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच इज कम, माल कैसे बेचे और स्टेबिलिटी ऑफ कैल्शियम एंड यूरिया डिस्टर्बेंस। सर माल कैसे बेचे ये आंसर सिंपल, एज लॉन्ग एज कस्टमर आपके रिएजेंट को यूज करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहा है, वो आपसे माल लेता रहेगा। आपका माल अगर उनके लिए एक्सेप्टेबल है और उसको ज्यादा रिपीट्स नहीं करने की वजह हर एमएल उसको रिपोर्टेबल रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो आपसे माल लेता रहेगा। यू शुड बी इन गुड बुक्स ऑफ द कस्टमर्स मेंटल और इमोशनल नीड्स, तो आपका माल बिकता रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली इज वन क्वेश्चन जो आपको हमेशा अवेलेबल रखना ही है सामान को, ये माल बेचने का एक सिंपल फंडा है। एंड इसका तो टॉपिक ज़्यादातर जो सेल्स ट्रेनिंग वाले हैं वो लोग वो ज़्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं कि किस तरीके से आपको माल बेचना है, कौन सा शर्ट पहन के जाना है, कौन से जूते पहन के जाने हैं, आपका पैंट फटा नहीं होना चाहिए, आपका बैग अच्छा होना चाहिए, आपका लिटरेचर अच्छा हो, यानी दरा बैरी वो एक अलग ही लाइन है पूरी जहाँ पे ये बात की जा सकती है। वी कम डाउन टू स्टेबिलिटी ऑफ कैल्शियम एंड यूरिया डिस्टर्बेंस जो इसी क्वेश्चन का पार्ट था। सो वी स्टार्ट दिस कैल्शियम स्टेबिलिटी। अभी मैं ये बोलूंगा कैल्शियम स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि कैल्शियम के रिजल्ट्स जिस टाइम पे आपको गलत आने लग जाए वो स्टेबिलिटी गई। तो सही कैसे आ रहा है, लार्जली कैल्शियम इज इन द एयर, जहां पे ये कैल्शियम कार्बोनेट के तौर पे डस्ट में घूमता रहता है। तो आपके ग्लासवेयर्स पानी से या एयर से कंटामिनेटेड ग्लासवेयर के अंदर रिएजेंट यूज किया गया है, विच विल कॉज द रिएजेंट ब्लैंक बिकमिंग पिंक। वहां पे आपने ओडी जो कैल्शियम सीरम से आ रही है प्लस ओडी विच इज कम फ्रॉम द ग्लासवेयर या एनवायरमेंट से मिल के आपको हाई रिजल्ट्स देगा।
या वेरिएबल रिजल्ट्स देगा, बिकॉज ये आपके एयर से जो आ रहा है डस्ट या आपके ग्लासवेयर से जो आ रहा है पार्टिकल्स, पानी से जो धोया है वो अच्छा नहीं था, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू कंटामिनेशन नहीं देंगे, ये वेरिएबल कंटामिनेशन देने वाले हैं। और इसीलिए आपके रिएजेंट के रिजल्ट्स भी हमेशा फ्लक्चुएटिंग ही आएंगे। बेस्ट आंसर फॉर कैल्शियम टू गेट गुड रिजल्ट्स इज यूज डिस्पोजेबल टिप्स, डिस्पोजेबल ट्यूब्स, एंड एज फार एज पॉसिबल आपकी जो सेटअप हैं उसके अंदर जो ग्लासवेयर रिएजेंट के टच में आते हैं, दे शुड बी रिंस्ड विथ 0.1 normal hydrochloric acid followed rinsing with the demineralized water. This will remove all the precipitates from the water and air, और वहां पे आप यूज करना शुरू करेंगे, ये रोज के वेरिएशंस कैल्शियम के अंदर कम होने लग जाएंगे, एंड यू विल गेट ए कंसिस्टेंटली द सेम रिजल्ट, स्टेबल रिजल्ट्स। सो ये कैल्शियम स्टेबिलिटी लाने का रीजन हमने अवॉइड किया है कि एनवायरमेंटल और वॉशिंग रिएजेंट से जो कंटामिनेशन आ रहा है उसको हटाइए, रिएजेंट स्टेबल हो जाएगा, परफॉर्मेंस स्टेबल आएगा। So I said very clearly, contaminated glassware and atmospheric dust results in calcium reagent performance fluctuation. अभी एक रिजल्ट्स के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि अगर आपने गलती से कैल्शियम चिलेटिंग एंटीकोगुलेंट अगर यूज कर लिया है और वो सैंपल आपके पास में आया है कैल्शियम एस्टिमेशन के लिए, आपको रिजल्ट्स बिल्कुल ही गलत आएंगे, क्योंकि जो कैल्शियम पेशेंट के अंदर एस्टिमेशन के लिए आना चाहिए था वो तो एंटीकोगुलेंट ही लेके चला गया। तो आपको रिजल्ट्स, आपको ये इंश्योर करना है कि कैल्शियम के रिजल्ट्स शुड बी आइदर सीरम, or if it is not serum then it should be heparin or something like that, not calcium chelating plasma, वो नहीं होना चाहिए। अभी हम यूरिया की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है यूरिया के बारे में। तो कि यूरिया को जो कंटामिनेशन है वो दो जगह से आ सकता है, और यूरिया का कंटामिनेशन यूरिया का नहीं आता है। इफ यू टेक द प्रिंसिपल ऑफ यूरिया, तो ये होता है फर्स्ट रिएक्शन यूरियस विच ब्रेक्स डाउन यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये अमोनिया वाला जो कंटामिनेशन है ये हमेशा आपको आता ही रहता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इज बीन एस्टिमेटेड। चाहे वो यूवी काइनेटिक यूरिया है, वहां पे भी अमोनिया को अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के साथ में और फिर NADH एंड ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रिंसिपल से अमोनिया ही एस्टिमेट की जा सकती है। या अगर वो बर्थिलेट रिएजेंट भी है तो भी वो फिनोलिक क्रोमोजन के साथ में यूरिया की, नॉट इंडोफिनोल ब्लू बट ग्रीन कलर, बट अमोनिया ही एस्टिमेट की जा सकती है। ये अमोनिया अगर आपको कंटामिनेशन लैब सेटअप में आने लगा तो आपके रिजल्ट्स का कोई भरोसा नहीं है कि आपको कहाँ कहाँ से डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। ये अमोनिया आपको कहाँ से आ सकती है? अगर हमने एटमॉस्फेयर से अमोनिया बचाई तो हमारे पास में दूसरा और कल्प्रिट है, वो है डिटर्जेंट, जिससे हम ग्लासवेयर धोते हैं। नॉर्मली सर आप सभी जानते हैं कि आपके ग्लासवेयर्स हमेशा आप खुद नहीं धोते हैं, आपका लैब बॉय या फोर्थ ग्रेड पर्सन वो ग्लासवेयर को धोता है। वो ग्लासवेयर उसको विजिबली साफ दिखता है, वो समझता है कि ये क्लीन हो गया है। लेकिन अगर डिटर्जेंट विच आर लिक्विड और उसके अंदर डिटर्जेंट बनाने के टाइम पर अमोनियम क्लोराइड प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट के तौर पर डाला गया है, विच इज अवेलेबल एज अ चीप ग्लासवेयर क्लीनिंग ब्रांड्स, तो ये अमोनियम क्लोराइड इंटरफियर्स वेरियस डिग्री, बिकॉज आपका रिंसिंग कितना अच्छा हुआ है, 80% है, 90% है, 100% है, ये रोज आपके टेस्टिंग मेथड के अंदर ये डिटर्जेंट अमोनियम क्लोराइड का आपको कंटामिनेशन देता रहेगा। आपके ग्लासवेयर्स जिसके अंदर आप अपने ट्यूब्स पाइपेट्स वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हैं वहां पे कंटामिनेशन आपको परेशान करेगा। तो आई रिकमेंड कि आपके जो डिटर्जेंट्स हैं वो कोई अच्छी ब्रांड के डिटर्जेंट्स होने चाहिए। आई डोंट फील अशेम्ड इन रिकमेंडिंग जो प्रोफेशनली डिजाइंड लेबोरेटरी ग्लासवेयर वॉशिंग के लिए ब्रांडेड ग्लासवेयर डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट सॉल्यूशंस
थोड़े महंगे पड़ेंगे, लेकिन वो ही आपके लिए बेस्ट हैं। अदरवाइज चीप बाजार में मिलने वाले हैं, उनके अंदर अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, विच कॉजेज अ मेजर कल्प्रिट इन द होल गेम। सो दीज आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस विच हैज कम इनटू द लाइन। और आई थिंक मैंने करीब करीब 30 मिनट आपसे बात किया है, नहीं 30 नहीं, थोड़ा ज्यादा ही है। तो ये यशवंत सर, आई एम एट माई लास्ट स्लाइड, एनी अदर क्वेश्चंस? यस सर। नाउ सर, आपने जो 30 35 40 मिनट बात की, इतने डिटेल में आपने समझाया केमिस्ट्री को। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री रिएजेंट बेचना है, या फिर आप किसी लैब में बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रन करते हैं फोटोमेट्रिक मेथड से, सेमी ऑटोमेटेड हो या फुल्ली ऑटोमेटेड हो, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आप अगर रन करते हैं, तो इन सब के लिए जो कंप्लायंस है, ये सारी चीजें आपने बहुत ज्यादा अच्छी तरह बता दिया। और जिन लोगों ने आज ये प्रोग्राम अटेंड किया, आज का सेशन अटेंड किया है, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, अगर वो इन सारे चीजों को एडहर करें। तो आगे मैं अब युवराज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी ओर से वो एक फीडबैक फॉर्म डाल दें, और प्लस जिनको कोई क्वेश्चन है, वो अपने क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं। एक के बाद एक हम लोग लेना शुरू करेंगे। There is a सोडियम, question. Yes, sir. There is a question from Mr. Prahlad that is it good to use sodium potassium in semi-automated biochemistry analyzer? ये मैं presume कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके, सोडियम प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, यस यू कैन। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोडियम पोटेशियम सेमी ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में तो लोग कर ही रहे हैं, और बहुत सारे लोग रिपोर्टेबल रिजल्ट्स भी अच्छी तरह से दे रहे हैं। खाली अपने को ध्यान ये देने की चीज़ है कि पैरामीटर्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, ये एनवायरनमेंट से अफेक्टेड हो सकते हैं इन योर लेबोरेटरी सेटअप। तो as far as possible keep it environment clean, glassware clean and a strong QC, ताकि आपका डेली का रिजल्ट फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। ये आप ध्यान रखते हुए इनसे आप रीजन के रिपोर्ट्स कर सकते हैं, बिकॉज सोडियम है, पोटेशियम है, दोनों ही फोटोमेट्रिक एनालिसिस हैं, और इनके रिजल्ट्स रिपोर्ट किए जा सकते हैं। यस। There is one question from Mr. Avinash Soni. Why bilirubin results in infants vary from company to company? ओके, छोटे बच्चों के। यस हाँ, सर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर छोटे बच्चों के अंदर बिलिरुबिन आता ही कहाँ से है? ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के केसेस में क्या होता है कि छोटे बच्चे की जो आरबीसी है वो ऑटो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, वहां से हेमोग्लोबिन आउट एंड बिलिरुबिन फॉर्मेशन हैपेंस। ये बिलिरुबिन जो है वो नॉर्मल टाइप का बिलिरुबिन नहीं होता है। ये क्या बोलेंगे हम इनको, नियोनेटल बिलिरुबिन। नियोनेटल बिलिरुबिन रिक्वायर्स, अभी जैसे नियोनेटल को अपन थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, अपन सिर्फ बिलिरुबिन के ऊपर बात करेंगे कि बिलिरुबिन इज अवेलेबल इन अ ब्लड इन टू फॉर्म्स, फ्री बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड। बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड जो है वो डायरेक्टली एस्टिमेट हो सकता है बिकॉज इट इज सॉल्युबल। फ्री बिलिरुबिन इज नॉट सॉल्युबल, हेंस अगर इस फ्री बिलिरुबिन को हमको एस्टिमेशन के लिए अवेलेबल करना है डायजो रिएजेंट से, तो हमको एक एक्टिवेटर डालना पड़ता है। वो एक्टिवेटर होता है डीएमएसओ या यूरिया या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या मेथनॉल या इथेनॉल। वेरियस कंपनी यूजेस वेरियस दिस थिंग्स। अब ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ bilirubin and specially neonatal bilirubin be available to diazo reaction depends largely on the amount of activator used. ये एक्टिवेटर कंपनी टू कंपनी अलग अलग होते हैं। किसी का 100% एफिकेसी के साथ में है, किसी का 70% है, किसी का 20% एफिकेसी है। इट डिपेंड्स। और यहाँ पे जो नियोनेटल बिलिरुबिन की वैल्यू अच्छी दे सके वही रिएजेंट इज द बेस्ट। वो नियोनेटल को अच्छा दे रहा है तो ऑब्वियसली बाकी सबका तो अच्छा रिजल्ट्स देगा ही, बट स्पेशली टू टेक केयर दैट कंपनी टू कंपनी वेरिएशन बिकॉज ऑफ दिस एक्टिवेटर फॉर्मुलेशन डिफरेंट इन डिफरेंट कंपनीज। आई होप आई विल बी एबल टू गिव यू द आंसर।
Yes, sir. Yashwant sir. Yes, sir. You explained it very nicely, sir. There is one question from multi-point calibration for linear and non-linear. मिस्टर रितेश रमन जी का क्वेश्चन है ये, हम्म तो थोड़ा इस पे प्रकाश ब्रीफ डालें सर। अच्छा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन मल्टी पॉइंट कैलिब्रेशन विद लीनियर एंड नॉन लीनियर। ओके सर, इसमें आपको लीनियर एंड नॉन लीनियर का एक डेफिनेशन सभी के बेनिफिट के लिए ये दिया जाए कि अगर मैं एक कॉन्सेंट्रेशन एक्स वैल्यू का लूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी टेक इट एज अ ग्लूकोज। मैंने अगर यस सर। 100 मिलीग्राम % का ग्लूकोज का सैंपल लिया, मेरे को एब्जॉर्बेंस आई है 0.3 एट 546 और 505 नैनोमीटर। मैंने डबल किया तो मेरे को ओडी भी डबल हो रही है, 3 गुना किया तो ओडी भी 3 गुना हो रही है। ये एक मेरा लीनियर का है। तो मुझे ऐसे लीनियर कर्व के अंदर अगर मैं एक भी स्टैंडर्ड लगा दूं किट के परफॉर्मेंस टाइम पे या ऐसे के परफॉर्मेंस टाइम पे, और अगर मेरे को ओडी किसी सैंपल का डबल आया तो रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी डबल। ये मेरा लीनियर है। दैट मीन्स my absorbance versus concentration graph, if I run various concentration of calibrator या standards अगर लगाता हूं तो OD concentration के साथ में proportionately increase हो रही है up to the point of linearity। वो linearity photometric limitation भी हो सकती है या reagent की limitation भी हो सकती है, depends on situation and reagent to reagent। बट नॉन लीनियर हम किसको बोलेंगे? हम नॉन लीनियर उस चीज को बोलते हैं जैसे क्रेटिनिन है, चाहे फॉर एग्जांपल वी टेक इट एज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जहां सबस्ट्रेट इज मेजर्ड एज इन काइनेटिक रिएक्शन। सबस्ट्रेट इज मेजर्ड एज अ काइनेटिक रिएक्शन। अभी सबस्ट्रेट के जैसे जैसे रिएक्शन के साथ में सबस्ट्रेट की वैल्यू बदलती जाएगी, रिएक्शन काइनेटिक्स विल आल्सो चेंज। तो वो पैराबोलिक कर्व देता है। दैट मीन्स जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, ओडी उतना प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ा। अगर मैंने डबल किया है कॉन्सेंट्रेशन के कैलिब्रेटर का, तो मुझे ओडी डबल आने के बजाय 1.9 टाइम्स ही आई, 2 नहीं आई। मैंने ट्रिपल किया कॉन्सेंट्रेशन और वो मुझे 2.5 टाइम्स ही ओडी इंक्रीज हुआ है, नॉट 3 टाइम्स। तो ये ऐसे केसेस के अंदर मेरे को एक पैराबोलिक कर्व मिलेगा अगर मैं अपना ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ऐसे केसेस के अंदर हमको क्या करना होता है कि हमको पूरा ग्राफ प्लॉट करके और एक्स्ट्रापोलेशन पॉइंट ऑफ द ओडी ऑफ सैंपल एंड उधर जाके कॉन्सेंट्रेशन पे उसको एक्स्ट्रापोलेट करके देखना पड़ेगा कि हमको क्या कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यू आ रही है ओडी को लेते हुए। तो दिस इज लीनियर एंड नॉन लीनियर ग्राफ। Yes, sir. I hope I will be able to answer this. यस सर, यस सर। If anybody has any doubt, he may raise a question in between, no problem. Now I will move to the next question. This question has come from Vaisak PM. Hmm. TIBC, total ion binding capacity and ion stability issues in semi-automated analyzers. सर एक हम ये काम करेंगे कि टीआईबीसी एंड आयरन, ये एक पूरी केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एनालाइजर के लिए। अगर आप चाहें तो अपन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर यूआईबीसी, टीआईबीसी एंड अनसैचुरेटेड आयरन ये वगैरह के ऊपर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देके, इसको अभी अपन इसको थोड़ा साइड में रख के इसको बनाते हैं इसके लिए प्रेजेंटेशन, बिकॉज इसमें बहुत कंफ्यूजन है। अगर जिसने टेक्निकल आंसर को ठीक से नहीं समझा है तो ही विल कॉन्स्टेंटली हैव मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस रिएजेंट सिस्टम। ओके तो सर, आई स्किप कर देते, इस समय रिक्वेस्ट, स्किप कर देते, नो प्रॉब्लम। उसके ऊपर सर आज के लिए स्किप करेंगे बट वी विल टेक ए सेशन ऑन दैट। yes sir, we'll note the question. This question will remain unanswered and we'll take it in next episode or thereafter whensoever we यस, discuss TIBC and all this. मेरे पास में टीआईबीसी, यूआईबीसी, आयरन, ये उसके ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ अरे समझाना वाह, चाहता हूँ, यस सर, यस बट सर, थोड़ा यस सा सर, अपन टाइम लेके उसको इंडिपेंडेंटली लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। I'll move to the next question. Chettupalli, Mr. Yoneshan, sir, how to identify old reagent and new reagent mixing conditions? मिक्सिंग कंडीशन, व्हाट इज मीन बाय मिक्सिंग कंडीशन? Mixing condition, does he if सर पहला चीज तो ये है, मैं आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म चिट्टूपली सर कि यू आर नॉट सपोज टू मिक्स टू डिफरेंट लॉट ऑफ रिएजेंट्स।
because it is a standard good laboratory practice that reagents of different lots should not be mixed and used. तो बेस्ट है। और दूसरा चीज है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ओल्ड एंड न्यू रिएजेंट। फर्स्ट थिंग इज बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट। very simple way to identify which is the old, which is new one. But as far as possible, avoid mixing. Okay. Sir, I think I have missed one question. I'll take it hereafter. Now, let me go to the next question, which हाँ has come from Mr. Deep Patidar. How to solve alkaline phosphatase color development? I think this has been answered, but still, sir, in short, brief, if you wish to. हाँ सर, ये है ना, मेरा ये कहना है कि हमारे ये जो क्वेश्चन आंसर सेमिनार्स है ना, ये अगर आप यूट्यूब पर डाल सकेंगे, तो जैसे भी आपने डालने का कोशिश भी किया है कि क्वेश्चंस वर्सेस आंसर्स आपने एक बार को शेयर किया था, वेदर इट इज गॉन इनटू द ग्रुप और नॉट। बट अल्कलाइन फॉस्फेटेस का तो मैं सिंपल सा चीज ये बता सकता हूँ कि para-nitrophenyl phosphate, very unstable compound, and it is required to be weak phosphate bond substrate for alkaline phosphatase. वो is bound to bring the alkaline phosphatase into yellow color. आपको उसको जितना हो सके लो टेम्परेचर पे, लो लाइट के ऊपर, एंड जितना टाइम नहीं कर सके एक्सपोज उतना अच्छा है। ये चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने रिएजेंट को संभाल के रख सकते हैं। दूसरा, अगर ये अनअवॉइडेबल है तो आप अपने रिएजेंट्स को उठा के छोटे छोटे एलिकॉट्स में डाल के और डीप फ्रीजर में डाल दीजिए। इसका कलर डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाएगा। ब्रिंग इट टू द रूम टेम्परेचर द ऐसे नंबर ऑफ वायर्स विच इज रिक्वायर्ड, और आप उसको तुरंत यूज कर लीजिए। आपको कलर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम से थोड़ी तो निजात मिल ही जाएगी। Okay, sir. बहुत बढ़िया. Mr. Kiran Mohan KV. Sir, how to clean the filter of a semi-automated biochemistry analyzer? What types of material can be used to clean it? To clean ओके, those filters? Yes, sir. सेमी ऑटोमेटेड बोला है क्लियरली, दैट मीन्स आपको उसका तो ऊपर से कवर तो खोलना पड़ेगा, फिल्टर व्हील देखना पड़ेगा, और फिल्टर व्हील देखने के बाद में अगर डस्ट है उनके फिल्टर्स के ऊपर, तो डस्ट को तो बहुत इजीली हम आईपीए से क्लीन कर सकते हैं या लेबोरेटरी क्लीनर से यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में एक लिंट फ्री क्लॉथ से या टिश्यू पेपर से उसको ड्राई करना पड़ेगा ताकि स्क्रैचेस नहीं बने। और अगर बहुत ही ज्यादा बैक्टीरियल कंटामिनेशन और जेल वाले फिल्टर्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, देन और उससे फिल्टर गेन लॉस हो रहा है, तो रिप्लेस करने का ही रास्ता बचता है। अदरवाइज अ नॉर्मल आईपीए स्वैप जो टिश्यू पेपर पे लगाया हुआ है, जो ब्लड कलेक्शन के टाइम पे भी यूज किए जा सकते हैं, अल्कोहल स्वैब्स होते हैं, दे आर द बेस्ट थिंग टू क्लीन। और एल्स अगर वो सब नहीं है अवेलेबल, तो आप एक स्प्रे बॉटल से आपका हैंड सैनिटाइजर वहां पे स्प्रे करके और टिश्यू पेपर से, सॉफ्ट टिश्यू पेपर से उसको क्लीन एंड ड्राई कर लीजिए। दैट इज द बेस्ट मेथड। बट इंश्योर ये सब करने के टाइम पे आपका लैंप का पोजीशन हिलना नहीं चाहिए और आपके एनालाइजर की कुवेट की लोकेशन हिलनी नहीं चाहिए। अदरवाइज लाइट पाथ के अंदर अगर आपका कुवेट का होल अलाइन नहीं है, यू विल स्टार्ट लूजिंग द फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी। सो दैट डिस्टर्बेंस शुड बी टेकन केयर ऑफ। Okay, sir. Very good, sir. Now I'll move to previous question which I missed to see. This हाँ question has come from Mr. Mahesh Napit. हाँ Sir, if we run a test and it is more than linearity, what type of flags or graphs is seen? Sir, once Semi-automatic. again, okay, I now located that question. Sir, if we run a test and it is more than linearity, what type of flags or graph is seen? Semi-automated biochemistry analyzer. And what is the first dilution factor to be done? Okay, first, sir, आपको पहला चीज ये देखना पड़ेगा कि आपने जो प्रोग्राम डाला है सेमी ऑटो एनालाइजर के अंदर, उसने आपने पैनिक वैल्यू या हाई वैल्यू या लिमिट ऑफ द एसे आपने क्या लिखी है। अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल शुगर के लिए आपने लिमिट रखी है 500 मिलीग्राम और आपका रिजल्ट 500 से ज़्यादा जा रहा है, अगर आपने गलती से वहां पे 200 लिख दिया है, तो आपको 201 की वैल्यू को भी वो फ्लैग कर देगा, विच मे नॉट बी वेरी हाई, पैनिक वैल्यू नहीं है वो।
ओके, सो आपको प्रोग्राम के अंदर जाके देखना है कि लीनियरिटी ऑफ द टेस्ट इज 1, सेकेंडली हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पैथोलॉजिकल रेंज इज सेकंड, ये आपके प्रोग्राम में है क्या? सो दैट इज 1। और अगर आपकी लीनियरिटी ऑफ द, अब ये हर एक आईएफयू के अंदर लिखा होता है क्लियरली कि व्हाट इज द लीनियरिटी लिमिट ऑफ द टेस्ट, इस रिएजेंट सिस्टम का, वो आपकी अगर उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है तो बेस्ट थिंग इज यू डू नॉट नो कि उसको वैल्यू है कितनी। जो वैल्यू आ रही है वो तो आपको लगेगा कि शायद ये वैल्यू तो सही नहीं है, तो बेस्ट थिंग इज यू डू इट अ हाफ डाइल्यूशन or double dilution. Let's say we call it double dilution. That means if you are taking a serum 0.1 ml serum, या अगर आपके पास में कम है तो 50 माइक्रोलीटर सीरम प्लस 50 माइक्रोलीटर सलाइन मिक्स करें, पाइपेट को टिप से लेके 3-4 बार रिपीट पाइपेटिंग उसके अंदर करें, थोड़ी मिक्सिंग हो जाएगी और उसी में से आप अपना सैंपल लेके रन करें, जो भी रिजल्ट आता है मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी द राइट आंसर। अगर वहां भी अगर जाके कोई अनफोर्सीन सिचुएशन के अंदर उसको करने के बावजूद भी अगर आपकी लीनियरिटी से ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, देन इज द बेस्ट टू डू इट डाइल्यूशन 4 टाइम्स। दैट मीन्स आपने अगर 50 माइक्रोलीटर सीरम लिया है तो 150 माइक्रोलीटर सलाइन डाल के उसको रिपीट पाइपेटिंग से मिक्स करके और फिर उसमें से सैंपल लेके जो भी रिजल्ट आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज द बेस्ट वे। तो फर्स्ट डाइल्यूशन डबल करके देखिए, नहीं है तो 4 ओके ट्राई। सर। The next question is from Mr. Prashant Joshi. Which tube is better, glass या plastic for biochemistry test in semi-automated analyzer? सर आपको टेस्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा टेस्ट है। Okay. ग्लास ट्यूब जो है वो तो बेस्ट होती ही है, बट ग्लास ट्यूब के अंदर नॉर्मली क्या रहता है कि जब तक वो टूटती नहीं है हम बार बार उसको धो के यूज करते रहते हैं। जबकि Okay. प्लास्टिक की ट्यूब के अंदर एक अच्छा बेनिफिट ये होता है कि उसको ऐसे कोई उसका डैमेज नहीं है आपके टेस्टिंग के अंदर, बिकॉज अल्टीमेटली दिस प्लास्टिक ट्यूब्स आर ऑल वेरी क्लियर। कोई कलर कंटामिनेशन देते नहीं, कोई पार्टिकल कंटामिनेशन देते नहीं है ये। और अगर कोई केमिकल लीच भी होता है तो आपका टेस्टिंग तो टाइम 10 मिनट 5 मिनट का ही है, तो उसमें कोई इतना लीचिंग होता नहीं है। तो प्लास्टिक ट्यूब कैन बी यूज, बट इसका बेनिफिट ये है, एक तो ब्रेक नहीं होती है, दूसरा जो जो लेबोरेटरी हैजार्ड है, दूसरा है अगर अगर वो स्क्रैचेस ज्यादा आने लग गए तो आप उसको उठा के रिप्लेस करके नया ले लेते हैं। जो कि आप टेंट करेंगे ग्लास की ट्यूब में, आप रिपीट जब तक वो टूटेगी नहीं आप बार बार उसको धोएंगे यूज करेंगे, धोएंगे और यूज करेंगे। बट बेनिफिट ऑफ ग्लास ट्यूब इज कि वो ड्राई की जा सकती है इन ओवन, वो जो प्लास्टिक को नहीं किया जा सकता। दोनों के फायदे नुकसान है, लेकिन प्लास्टिक ट्यूब को यूज करने का नुकसान कुछ नहीं है, कैन बी यूज, शुड बी Okay. क्लीन एंड ड्राई। Ideally, it should be glass, but plastic का there is no disadvantage. ऐसा? यस यस ठीक. सर। Okay, sir. Okay, sir. I'll move to next question. The next question has come from Mr. Amit Chauhan. In some cases, SGOT, SGPT come frequently less than 10. What does it mean? And in some cases, SGOT is coming around 10, but still SGPT comes less than 10. In some cases, SGOT is coming around 30, but SGPT is still coming less than 10. Okay. Yes. Okay. Let me address it in one way कि आपको ये जीपीटी और जीओटी के रिजल्ट्स ये 10 और 30 दो सिचुएशन में आ सकते हैं। एक सिचुएशन थी है कि पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल ही है और आपको रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं। ओके। नंबर 2 कि अगर पेशेंट एब्सोल्युटली हाईली लिवर सिरोसिस का पेशेंट है जिसकी एसजीपीटी और एसजीओटी वैल्यू 3-3, 4-4 हजार यूनिट्स पर लीटर है, दोनों ही केसेस में रिजल्ट्स आपको 10, 20, 30 ऐसे ही आएंगे। ओके। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इन बोथ द केसेस कि किसमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज वी टेक वॉट एवर ही सेड कि यही सही है, फ्रीक्वेंटली लेस देन 10, SGPT value comes frequently less than 10. What does it mean? And sir, in some cases, SGPT is coming 30, but still SGPT is coming is less than 10. सर पहला चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको किसने बताया कि जीपीटी की और जीओटी की वैल्यू एक दूसरे से मैच होनी चाहिए? ये मिसकंसेप्शन है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का। हम ओटी और पीटी साथ में बिकते हैं, साथ में बोले जाते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि दोनों सेम बीमारी में है। Sir, SGOT is meant for heart attack testing. SGPT is meant for liver problems.
they are two independent parameters for two independent diseases. Their values can be independently different. Value as long as they are less than 40, they are normal. अभी किसी का 30 है, दूसरे का 10 आ गया, हो सकता है उसकी वैल्यू 10 हो। दैट इज सिचुएशन ए, जिसके अंदर रियली ऐसा हो रहा है। तो आप लिंक करने की कोशिश मत करिए कि इसका 30 आया था, दूसरे का 10 से नीचे क्यों आया। दे आर टू डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर टू डिफरेंट डिजीजेस, दे कैन बी, बट इट्स वेरी मच नॉर्मल। दूसरा केस, कि अगर लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी है जिसमें वैल्यूज मोर देन द लिनियरिटी, नॉर्मली जीपीटी और जीओटी के लिनियरिटी, ये जीपीटी जो साथ में क्यों बोला जाता है, बिकॉज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों सिमिलर प्रिंसिपल पे काम करते हैं यूवी काइनेटिक के ऊपर, इसलिए साथ साथ में इनको दिया जाता है। इन सच केसेस जहां पे वैल्यू बहुत ज्यादा है, नॉर्मली द लिनियरिटी क्लेम्ड इज, ओल्ड जमाने में 700-800 इंटरनेशनल यूनिट को लिनियरिटी लिमिट समझा जाता था। बाद में रीएजेंट के परफॉर्मेंस इंप्रूव हुए, ये लिनियरिटी इंक्रीज होकर 1500-1600 तक चली गई। अभी कुछ केसेस के अंदर ये 2K, हमने जैसे 2K रीएजेंट लॉन्च किया था, 2000 इंटरनेशनल यूनिट तक भी हम रिजल्ट्स दे देते थे। बट अगर आप इसके प्रिंसिपल को ध्यान से देखें, इट्स एन एनएडीएच कंजम्पशन। अगर लीनियरिटी, आई मीन लीनियरिटी की वैल्यू तो जो 2000 है वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी पेशेंट की वैल्यू 3000-4000 है, तो उसके प्रोग्राम के अंदर आप हमेशा देखेंगे कि डिले टाइम इन एसजीओटी और एसजीपीटी इज 60 सेकेंड्स। ये 60 सेकेंड फॉर अ वेरी हाई वैल्यू सैंपल इज इनफ टू ब्रिंग इट डाउन बिलो 0.5 ओडी फॉर द एनएडीएच सबस्ट्रेट। उसके बाद में एनालाइजर को 0.5 आने के बाद में 10 यूनिट है कि 200 यूनिट है या 3000 यूनिट है, वो वैल्यू 10 20 30 ही देगा, बिकॉज एनालाइजर का सबस्ट्रेट खत्म हो चुका है रिएजेंट का उस एनालाइजर में। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको इनिशियल ओडी पे ध्यान देना है। इज द इनिशियल ओडी अबव 1.0 इन जीपीटी एंड जीओटी, देन यू कैन डिपेंड ऑन द रिजल्ट्स। इफ इनिशियल ओडी इज लेस देन 0.9 एंड बिलो, फिर आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए। मुझे याद है किसी कस्टमर के यहाँ पे 0.4 ओडी चल रहा था और वो रिपोर्ट रिजल्ट्स, दे वर गिविंग द रिपोर्ट्स। आई सेड सबस्ट्रेट इज फिनिश्ड, दिस वैल्यू मे बी वेरी हाई in a patient, or reagent is very old. NADH is subject to degradation many times. It's not very stable compound. तो ध्यान देने की जरूरत है। और आंसर इस क्वेश्चन का तो सिंपल है कि 30 एंड 10 आ रहा है, पॉसिबल है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर से आ सकता है, नॉर्मल है ये। राइट सर। ओ, ओके सर। अगला प्रश्न है प्रदीप कुमार से। सर गिव सम टिप्स फॉर रनिंग अमोनिया इन सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर एज द रिजल्ट्स कम रिपोर्टेबल। अमोनिया टेस्टिंग अगर आपको करनी है ना सर, तो आपके एनवायरनमेंट का, लैब के एनवायरनमेंट का क्लीनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, मैं बोलूंगा आपका जो लैब का यूरिनल है उसका दरवाजा बंद रहना चाहिए, बिकॉज यूरिया डिग्रेडेशन हैपन्स, अमोनिया कम्स आउट ऑफ द यूरिनल विच आर नॉट क्लीन, ये अमोनिया लैब में घुसेगी। सेकंड, आपका जो जो रिएजेंट सिस्टम है, इट शुड बी एज फार एज पॉसिबल क्लोज्ड। मुझे याद नहीं है कि अमोनिया के रिएजेंट के लिए कोई स्पेशल ट्यूब आती है जिसके अंदर रिएजेंट को रखा जा सके या किया जा सके, बट नॉर्मल केसेस के अंदर एज फार एज पॉसिबल अमोनिया फ्रॉम द एयर शुड बी नॉट इंटरफियरिंग इन द एसे। अमोनिया अगर एयर में है तो इट विल गेट इनटू द रिएजेंट एंड कन्वर्ट्स इनटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट इज द कंटामिनेंट इन द अमोनिया एस्टिमेशन, या उसका प्रिंसिपल भी यही है। तो अमोनिया एयर से नहीं आनी चाहिए, और जितना हो सके उसकी अमोनिया के रिएजेंट का की कैप हमेशा टाइट ही रखिए। एट द टाइम ऑफ यूज ओपन इट, डू द टेस्ट, इमीडिएटली क्लोज इट। दैट इज द बेस्ट वे दैट योर रिजल्ट्स आर रिपोर्टेबल। एंड क्वालिटी कंट्रोल तो लगाना ही चाहिए हमेशा। अभी normally ammonia values in the quality control sera are given, but in some yes, in some no, but अगर आप अपना एक इंटरनल कंट्रोल भी बना सकते हो तो भी बेस्ट है। ओके सर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं सर। हाँ 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 प्लीज। अगला प्रश्न है प्रवीण उपाध्याय की ओर से। सर काइंडली एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटिंग फोटोमेट्री। आई मीन आई थिंक वो हाँ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में पूछना हाँ चाहते हैं। हाँ, यस यस देन सर। नॉर्मल फिल्टर इन फुल्ली ऑटोमेटिक एनालाइजर
what is the limit? I think he wants to ask what are the limitations of normal filter in fully automated analyzer compared with diffraction grating. ओके सर, मैं इसको पढ़ूं ध्यान से वापस से क्वेश्चन को. हाँ एक्सप्लेन सर, हाँ. बेनिफिट ऑफ grating photometry. Okay, then the normal filter and fully automated chemistry analyzer, and what is the limit of. Okay sir, let me explain it to you. I understood what the question is. कि दो टाइप के एनालाइजर्स आ रहे हैं. एक जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जैसा डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग होता है, वेयर यू कैन यूज एनी वेवलेंथ ऑफ चॉइस. whether you need 505 nanometer, you need 506, 7, 8, 9, 10, you are free to choose a wavelength in the analyzer. एंड दूसरा है कि वहां पे एक फिल्टर्स हैं, समटाइम दे आर इंटरफेरेंस फिल्टर्स, बट आपके पास में 505 नैनोमीटर की पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट आपके पास में 546 का ही है, बीच की कोई वेवलेंथ आप ले नहीं सकते. Okay, in either case, the results are going to come all right as long as calibration is done properly. लेकिन आपको ध्यान ये कि वो फोटोमेट्रिक ग्रेटिंग वाला है या फिक्स्ड फिल्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट इज कि उसकी बैंडविड्थ कितनी है. Plus Okay. minus how many nanometers it is giving. If suppose it says 340 nanometer, then plus minus 5 nanometer है या plus minus 2 nanometer है. वहां ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है बजाय कि वो डिफ्रैक्शन है या फिक्स्ड फिल्टर्स हैं. बट इन Okay. फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर, wavelength accuracy and wavelength bandwidth is more important than the जिसका भी वो बैंडविड्थ जितना नैरो है वो अच्छा है. Okay. बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बताया. और हालांकि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मेरा भी बहुत इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बारे में सुनता हूँ. ओके. मुझे आगे कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहे सर, लोगों ने थैंक्स कहा है. आई थिंक क्वेश्चंस आर ओवर. एक वन मोर क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम रूपक कुमार. हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एरर एंड एनालाइजर एरर टू पर्टिकुलर टेस्ट. ह्यूमन एरर एंड एनालाइजर एरर. हाँ. ओके. ह्यूमन एरर एनालाइजर एरर को टेस्ट करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल इज द बेस्ट आंसर. लेविजेनिंग चार्ट इज द बेस्ट आंसर. अगर ओके. ह्यूमन एरर है तो आपका लेविजेनिंग चार्ट में भी आपको फ्लक्चुएशन आएगा और एनालाइजर की एरर तो भी दिखाई देगा. ओके, मैं एक सिंपल सा एक सिचुएशन देता हूँ कि मैं अगर ह्यूमन एरर को समझ रहा हूँ तो मैं हाँ. 10 बार एक ही रिएजेंट एक ही सेट को लगाऊंगा और मेरे को अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं. दैट मीन्स माई प्रिसीजन. यस सर. अगर मैं एनालाइजर का वेरिएशन देखना चाहता हूं तो मैं एक ही रिएजेंट को, जिसको मैंने अब जैसे नॉर्मली केमिस्ट्री जो हम लोग करते हैं तो 1 ml एंड 10 माइक्रोलीटर या 5 माइक्रोलीटर ऐसा रिएजेंट हम यूज करते हैं सेटअप लगाने के लिए. अगर मैंने उठा के 1 ml के बजाय 5 ml ले लिया और 50 माइक्रोलीटर डाल दिया, दैट मीन्स आई हैव अ रिएक्शन मिक्सचर कलर विच इज 10 times द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एनालाइजर. मैं उसको करेक्ट. अभी सॉल्यूशन एक ही है, एक ही ओडी होनी चाहिए, मैं बार बार रिपीट उसको टेस्ट लगाता हूं और मुझे अलग अलग ओडी देता है एनालाइजर. दैट मीन्स माय एनालाइजर इज मेकिंग एरर. वो करेक्ट. अगर आप अवॉइड कर दें कि एनालाइजर इज नॉट मेकिंग एरर, फिर उसके बाद में आपको फिर भी रिजल्ट्स अलग आ रहे हैं, देन इट्स ह्यूमन एरर. ओके. ओके सर. वन क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम मिस्टर जितेंद्र. Sir, why after some time SgOT reagents OD getting less than 1? ओके सर, एस जी ओ टी रिएजेंट्स जो है ना, ये दो अलग अलग प्रेजेंटेशन में आता है, R1 R2 एंड ड्राई पाउडर. ओके. नाउ R1 एंड R2 जब ये है प्रेजेंटेशन तो इसके अंदर R2 इज वेरी स्टेबल and R2 is to be mixed only when there is a testing to be done. Okay. That is one. Number two, कि अगर मेरा ड्राई पाउडर है विच इज देयर आर सम कंपनीज जो वायल देती है, आप सीधा लाइफलाइज रिकॉन्स्टिट्यूशन करो. रोस्ट देता था एक जमाने में, अभी मुझे मालूम Yeah. नहीं कैसा करते हैं वो. लेकिन अगर आपका वर्किंग सॉल्यूशन है और आपको अगर लंबे टाइम तक उसको चलाना है तो एज फार एज पॉसिबल रिकॉन्स्टिट्यूट इन स्क्वायर वॉल्यूम एंड अवॉइड एजिंग ऑफ द रिएजेंट बियॉन्ड द रिकमेंडेड टाइम, जो 1 महीना 2 महीना होता है वो. लेकिन Okay. ये गिरता क्यों है इज अ क्वेश्चन. NADH डिग्रेडेशन विद द टाइम
is the reason for OD falling below because NADH absorbs light at 340 nanometer जो कि रिएक्शन में कंज्यूम होके NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है which has no value, no absorbance at 340 nanometer. तो NAD to NAD, I'm sorry, NADH to NAD conversion auto to be arrested. अगर वो नहीं किया तो वक्त के साथ में NADH डिग्रेड होके NAD में कन्वर्ट होगा रिजल्टिंग इनटू द सिचुएशन जहाँ पे OD 1.0 से नीचे हो जाती है. नॉर्मली इन केसेस ऑफ GOT, GPT, LDH, यूरिया नाइट्रोजन, दैट इज GLD, इन सब में डिक्रीजिंग काइनेटिक यूवी के अंदर आफ्टर एब्जॉर्बेंस इज सेट एट 1.5 एंड अबव एट 340 नैनोमीटर बाय द मैन्युफैक्चरर. और ये एजिंग के साथ में नीचे गिरता है जहाँ पे NADH इज नॉट स्टेबल. NADH एक कंपाउंड खुद अपने आप में अनस्टेबल है एट हाई टेम्परेचर एंड टाइम. सो एज फार एज पॉसिबल इसको कोल्ड में रखेंगे, थर्मल शॉक नहीं देंगे, ये ज्यादा दिन चलेगा. बट रीजन क्यों गिरता है नीचे इज अ डिग्रेडेशन ऑफ NADH कंपोनेंट इन द रिएक्शन. ओके सर, आई थिंक क्वेश्चंस आर ओवर. किसी ने रिक्वेस्ट भेजा सर, डियर सर कैन वी गेट द वेब दिस वेबिनार एज रिकॉर्डेड. तो फॉर दोज हु आर ऑनलाइन उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि द रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब. You all may view it after the third webinar. So today second webinar was there and it is going on. So now very shortly we'll be releasing the recording of first webinar. So after third webinar we'll be releasing the recording of second webinar. तो जिनके मन में क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग के बारे में उन सब के लिए आंसर था. सर एक क्वेश्चन और आया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. डियर सर, Can the yes, linearity of SGOT SPT can be increased while restricting the time limit of delay and read time? yes sir, Should I yes, take yes, this? yes sir, please. ओके. सर आपका डिले टाइम पे तो कोई कंप्रोमाइज कभी मत करिएगा. Okay, इन SGOT और SGPT डोंट कंप्रोमाइज ऑन द डिले टाइम बिकॉज आपके SGOT और SGPT के प्रिंसिपल के अंदर जो सबस्ट्रेट यूज किए जाते हैं दैट इज एस्पार्टेट एंड एलेनाइन, दे आर yes, वेरी मच अवेलेबल इन द ह्यूमन सीरम. जो एंजाइम यूज किए जाते हैं LDH एंड MDH, दे आर ऑल्सो वेरी मच अवेलेबल इन द ह्यूमन सीरम. तो जैसे ही आपको पहले ह्यूमन सीरम का इंटरनल कंजम्पशन जब तक इन सबस्ट्रेट का खत्म नहीं हो जाता, दे विल बी गिविंग यू अ फॉल्स इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ SGOT SGPT विच इज टू बी अवॉइडेड. तो 60 सेकंड आउट ऑफ क्वेश्चन कि यू कैन डू एनीथिंग विद दैट. नाउ रीड टाइम इज द ओनली थिंग. अगर आपका एनालाइजर बहुत अच्छा है तो अभी मैं इसको आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके स्टार्टिंग OD इज 1.0, आपको मैक्सिमम आप नीचे जा सकते हैं इसको रीडिंग लेने के लिए 0.5 तक. तो आपके पास में 0.5 OD का ही मार्जिन है. उस 0.5 OD को आपके रीड टाइम के अंदर अंदर मैच करना है तो यू कैन रिड्यूस योर रीड टाइम फ्रॉम लेट्स से 1 मिनट टू हाफ अ मिनट और टू 15 सेकंड्स 20 सेकंड्स. ऑटोमेटिकली एनालाइजर को आप ये प्रोग्राम बोलेंगे कि मेरा रीड टाइम इतना है, इट विल कन्वर्ट तो जो भी डेल्टा वडी आती है उसको पर मिनट में कन्वर्ट करके ही आंसर देता है. सभी एनालाइजर में ये सुविधा है. लेकिन इंपॉर्टेंट इज कि आपका ये जो 20 सेकंड के अंदर लीनियर रिएक्शन जो एनालाइजर के हिसाब से रीडिंग के अंदर कैप्चर करने का कैपेसिटी होना चाहिए. रिएक्शन के अंदर रिएजेंट में तो होता है, इफ देर आर पार्टिकल्स देन बात अलग है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द रिएजेंट हैज अ वेरी स्ट्रेट लीनियर रिएक्शन अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो. लेकिन एनालाइजर के पास में इतने शॉर्ट टाइम के अंदर एक्यूरेट रीडिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए. तो यू कैन रिड्यूस द रीड टाइम इंक्रीजिंग द SGOT SGPT लिनियरिटी. बट ध्यान ये रहे कि इतना भी छोटा नहीं कर देना है कि वो चेंज इन OD ऑलमोस्ट पकड़ ही नहीं पाए एनालाइजर. ओके, दिस इज हाउ यू okay कैन sir, इंक्रीज योर लिनियरिटी. okay sir. एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रितेश रमन जी का. कौन सा यूट्यूब चैनल है सर जी, यानी जिस पे रिकॉर्डिंग आएगी वो कौन सा यूट्यूब चैनल है? तो इस समय जो लोग ऑनलाइन अवेलेबल है उन सब के लिए आंसर है कि इस समय आप लोगों के स्क्रीन पे उन्होंने बॉक्स में लिंक दे दिया है और चैनल का नाम है मेड डिवाइस सर्कल.
आपको लिंक को क्लिक करके सर्कल नाम का ऐप डाउनलोड करना है। उसके अंदर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह वगैरह, और उसी को रजिस्टर करके आपको इस चैनल पे आपको अपलोड किया हुआ सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन रमन जी। इफ यू हैव फाउंड माय आंसर प्लीज राइट थैंक यू। और किसी के कोई क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू रमन जी, आपका आंसर मिल गया, थैंक यू लिखा हुआ। इफ नोबडी हैज एनी क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चंस जो है जो पहले रजिस्ट्रेशन में भेजे उनके ऊपर या अभी जो आए कहीं कहीं जो भी आपकी इच्छा सर, यू आर द जज, यू हैव टू डिसाइड विच से ओवर क्वेश्चन यू लाइक। जिन्होंने पहले भेजा या जिन्होंने इस समय पूछा, सब आपके ऊपर निर्भर करता है सर। वी हैव नो राइट टू इंटरवीन इन दैट। ओके सर, मैं दो चीजों के ऊपर, एक जिन्होंने भी नियोनेटल बिलिरुबिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, यस सर। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पर्टिनेंट टू द प्रॉब्लम ऑफ द डे टू डे। ओके तो जो नियोनेटल बिलिरुबिन के ऊपर जिन्होंने पूछा है कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रिजल्ट्स क्यों आते हैं, दैट यू कैन सेलेक्ट वन। ओके सर। ओके, मेरे को दो और चूज करने हैं ना? हाँ सर। थोड़ी तकलीफ दे रहे सर, लेकिन नहीं, कीजिए। तकलीफ नहीं सर। दिस इज द बिलिरुबिन का क्वेश्चन था अविनाश सोनी सर से, ओके राइट? एंड दूसरा जो है ठीक उसके नीचे ही है, वो रितेश रमन का है कि ओके सर। मल्टी पॉइंट एंड लीनियर इन ग्राफ के अंदर क्या एलोबरेशन उनको चाहिए, बिकॉज ये ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है। जिनको मल्टी पॉइंट है सिंगल पॉइंट से चला रहे हैं, जिन सिंगल पॉइंट है उनको मल्टी पॉइंट से चला रहे हैं, और रिजल्ट्स रिपोर्टेबल होता ही नहीं है और क्वालिटी कंट्रोल मैच ही नहीं होता। ओके दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इश्यू ओके सर। और देन मैं अभी प्रेजेंटेशन में जाने के बजाय आपके आने वाले क्वेश्चन, बिकॉज प्रेजेंटेशन क्वेश्चन तो अच्छे हैं ही हैं, और लेट मी जस्ट गो थ्रू। ये सर एक ये लीजिए, हाँ हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एरर इन द एनालाइजर और इंस्ट्रूमेंट एरर। क्योंकि यहाँ पे जब रिजल्ट्स वेरिएशन आते हैं टू एसर्टेन कहाँ करेक्शन की जरूरत है, इंस्ट्रूमेंट में या ऑपरेटर में। ओके सर। ऑपरेटर का सेटअप मतलब सिर्फ ऑपरेटर ही नहीं होता, ऑपरेटर के अंदर उसके पाइपेट और वो दोनों भी आ जाते हैं, कैलिब्रेशन। ओके यस यस। ये एक बहुत पर्टिनेंट प्रॉब्लम है जो एड्रेस की जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत जगह पे आंसर्स ढूंढ रहे हैं, कस्टमर कंप्लेन वैलिड की यूं ही रहेगी, कभी ओके सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। सो बिल्कुल। दीज आर द थ्री आई रिकमेंड दैट यू कैन टेक इट अप। ओके सर, तो आई हैव taken their names: Avinash Soni, Ritesh Raman, and Rupak Kumar. These three are the winners of today's questions. Those who have thrown good, interesting questions to you, and you found them to be rewarded. तो इन राइट तीनों सर, के नाम है। इन लोगों को हम लोग खुद अप्रोच कर लेंगे, या तो वो हमें अप्रोच कर लेंगे। उनके गिफ्ट्स उनको भेज दिए जाएंगे सर बहुत जल्द। कॉन्ग्रेचुलेशन टू। नेक्स्ट टाइम से सर, आप अगर आप गूगल फॉर्म में से भी क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहे तो नेक्स्ट टाइम से वो भी एडवांस में सिलेक्ट करके रख सकते हैं, ताकि ऐसी हैफाजर्ड मेथड में इमीडिएटली चूज करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। सॉरी सर इस बार के लिए। नो प्रॉब्लम सर, विल डू दैट, विल डू दैट। ओके सर। ओके सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for your valuable for sparing your valuable time and participating in this important session. Thank you. Thank you Priyank ji, thank you Yuvraj ji, thank you Dashora sir, and thank you Vinayak Bhatt sahab. Thank you very much. I'm delighted sir, thank you. Yes sir, yes. Okay. Okay.